عثمان کے بعد. اب اس کے بعد اس نے یہ اتنی بات کرنے کے بعد وہ پھر وضاحتی اس کا بیان تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے سے اگر یہ تعبیر کے اندر غلطی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ظاہری کہہ رہا تھا، حقیقی معنوں میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، اگر میرے سے یہ تعبیر کرنے میں مسٹیک ہوئی ہے تو میں اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں. پھر اس نے یہ بھی بات آگے کی ہے کہ مجھے شاید یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی آن کیمرہ، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ کلپ اب اس کے بنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بالکل کوئی بے حرمتی یا مطلب کوئی اس طرح کی بات کرنے کا میرا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ میں سوچ سکتا تھا. وہ بھی اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں. اور ایک اور اس کا کلپ تھا جو اس نے اسی وضاحتی بیان میں بھی چلایا ہے، جہاں پر وہ بات کر رہا تھا، اس نے وہ آیت پڑھی ہے جس کے اندر آتا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو، کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. تو وہاں پر وہ سن رہے ہیں عامر بھائی؟ اچھا، وہاں پہ عامر بھائی اس نے وہ جو امی کا ورڈ تھا نا، اس پہ وہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم دیا تھا، اور ہر بندہ ان سے سیکھتا ہے، اس دنیا میں ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے. 48 نمبر کوٹ کیا اس نے، وہ نہیں، اس نے وضاحتی بیان میں تو یہ 2 آیات اس نے بتائی ہیں. سورۃ عنکبوت نہیں میں نے دیکھی اس کے وضاحتی بیان میں. اچھا ہاں جی، گل جاری تو رکھو. وہ جو امی والا ورڈ تھا نا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پورے علماء کا یا سب کا یہ اجماع ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. لیکن اس نے یہ جو مطلب سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے نا کہ اس نے کہا ہے کہ ان پڑھ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا ہے کہ معاذ اللہ، نہ اس نے ویڈیو بھی ساتھ چلائی ہے تو اس نے ان پڑھ کا کوئی کہیں بھی وہ ورڈ نہیں یوز کیا. اس نے کہا یہ صرف ہمارا اجماع ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. تو یہ ان کا ایک معجزہ ہی تھا، جو ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو ڈائریکٹ علم دیا ہے، اور ان سے زیادہ علم اس پوری دنیا میں کسی انسان کو نہیں ملا. یہ ہے اس کا پورا ایک وضاحتی بیان جو میں نے آپ کو مطلب تقریباً ان کوٹ ہی سنا دیا ہے. نہیں، جب تک وہ ڈائریکٹ ویڈیو نہ سنی جائے، لیکن بظاہر جو پہلا آپ نے حصہ سنایا اس میں کوئی ایسی غلطی خاص نہیں لگتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ سنانے میں اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کر رہے ہوں یا ایگزیکٹ آپ ورڈ نہ کوڈ ان کوڈ کر رہے ہوں، تو اس میں فرق نہیں ہو عامر بھائی، سکتا ہے. اس نے لیکن جو بات ہاں جی، لیکن اس نے یہی بات پہلے کی، جو اس نے کہا بات ظاہری اعتبار میں، ہاں پہلی بات کی بات کر رہا ہوں. یہ بات ہے، وہ بات تو ہضم ہونے کے قابل نہیں ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے، کیونکہ نبی پاک صحابہ سے لکھواتے تھے قرآن، تو انہوں نے ان کی طرف سے کوئی ایرر ہو گیا، مطلب وہ ایرر کو تسلیم کر رہا ہے. یہ بات تو بالکل یہ ہضم ہونے وضاحت، والی نہیں ہے جو پہلے قرآن بھائی. ہاں اصل میں وہ جو سی ویڈیو ہے نا، جس طرف وہ اس کا وہ مطلب بیسیکلی وہ اس نے نا جو قرآن کی تصدیق کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہوا ہے نا، بیسیکلی وہ لیکچر پھر پورا سننے والا ہے، کیونکہ وضاحتی بیان کے اندر اس نے جو ویڈیو دکھائی ہے نا، اس ویڈیو میں یہ بات نہیں ہے کہ اس نے کہیں یہ کہا ہو وہ چلا کے کہ صحابہ کرام سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے، کیونکہ اگر وہ کہتا تو پھر تو وہ بات وہی والی ٹھیک ہو جاتی نا کہ مطلب یہ ہضم نہیں ہو سکتی بات. لیکن وضاحتی بیان میں تو یہ بات نہیں اس نے کی، وہ پورا لیکچر سننا پڑے گا کہ وہ اس لیکچر کے اندر وہ کیا بات کر رہا ہے. میرے خیال میں آپ کے پاس تو شاید ابھی کوئی نہ آ سکے، تو میں اتر رہا ہوں، تو میں ذرا جا کے نا ویڈیوز 2-3 اور دیکھ کے نا تو پھر میں آتا ہوں. ہاں جی ہاں اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریکویسٹ ہے اپنے ماڈریٹرز نوں کہہ دیو کہ تواڈے پوچھے بغیر مینوں کرے لا کے بلا کے نہ کر دین. جزاک اللہ. کوئی بندہ نہیں کرتا. وہ دی ویڈیو نہیں سنی، میں صرف ایک گل ہی ہن سنی ہے تے منوں نجف نے بھی وہ ویڈیو کر لیے. یار منوں اے اپنے کوئی مسلمان اپنے دل تے ہاتھ رکھ عامر بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی جڑی ہے اللہ دی طرفوں جان بوجھ کے رکھی گئی ہے. عبداللہ صاحب ایک سیکنڈ، ٹھیک کیتا نہ سواب ہے. ایک عبداللہ صاحب ایک سیکنڈ، کیا کوئی مسلمان ہے سمجھ سکتا ہے کہ ساڑا کوئی عالم ٹھیک ہے ایک اج دے وقت دا ایک ٹاپ لیول دا عالم کوئی گستاخی کر سکتا ہے قرآن دے بارے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے؟ یار پتہ ہوندا کوئی نہیں، ایویں سنی سنائی گلاں تے لوگ تبصرے کرنا شروع ہو جاندے نے. نہیں آمدن تو نہیں نا کوئی بھی آمدن نہیں آمدن کوئی بھی نہیں کرتا بندہ. غلطی ہوندی ہے، اگر اس غلطی کولوں
ਬੰਦਾ ਰਜੂ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਜਰ ਬਾਸ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਜ਼ਾਹਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ अल्लाह ने जानबूझ के कुरान की खिलाफी रखी, इससे वो पीछा नहीं होता। आमिर भाई केड़ी गलती तो पीछे नहीं आया अब्दुल्ला, बहुत मैं रजू करे ना, अगर मैं तो गलती हो गई है तो मैं रजू करे ना। तो और फिर नहीं, एक मिनट मैं तो सुना ना आमिर भाई, सबर कर जाया करो, रौला पाया जे 24 घंटे का बंद करो माइक। जी रेल भाई बात करें। जी आमिर भाई, वो तारिक मसूद के बारे में अच्छा इत्तेफाक से मैं आ गया हूँ, तो बात चल रही थी, वो वीडियो मैंने भी सुनी है। मसला ये है कि तारिक मसूद साहब ने इंतहाई इल्मी जो गुफ्तगू होती है ना, जो स्टूडेंट्स के बीच में चलती है या उलमा के बीच में करती है, उनकी गलती ये भी कि उन्होंने कर दी पब्लिक में, और पब्लिक भी वो जो बात उठाती है उसके ऊपर इल्मी तहकीक के बगैर जो है वो झपट पड़ती है किसी के ऊपर भी, मौका चाहिए। ठीक है, एक जो उन्होंने उस पूरी बात के अंदर जो मुकम्मल बात की वो मैंने पूरी वीडियो सुनी है उनकी, वजाहती वीडियो की बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल उनकी वीडियो है वो मैंने सुनी है। उन्होंने जहाँ तक कुरान की किताबत की बात की है उसके एरर की उन्होंने बात की है, जिसके बारे में ये बात आ सकती है कि कुरान की किताबत वो चूँकि ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो क़िराअत आई है, हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़िराअत आई है। किताबत के अंदर आगे पीछे चीज़ें हो सकती हैं, और किताबत भी हमारी कुरान की ऐसी थी कि पहले नुक्ते नहीं थे उसमें, उसके बाद एराब नहीं थे उसमें, उसके बाद ये जो हिज्जे हैं ये हर जगह पे मुख्तलिफ़ किस्म तरीके से होती है। तो वो एक इल्मी बात थी जिसको इल्मी रंग में ही देखना चाहिए। और जो उलमा हैं, पीर अस्कानी साहब को मैं देखूंगा कि वो क्या इसके पर तबसरा करते हैं कि जितना मैंने इसको पढ़ा हुआ है कुरान की किरात को और किताबत को, उसमें उन्होंने कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं की। हाँ, ये जो लफ्ज़ था उनका कि सहाबा किराम के बारे में उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई, ये चीज़ मेरी भी तहकीक में नहीं है कि वाकई ये उलमा की तरफ से ये बात कही गई है, क्योंकि तारिक मसूद भी मतलब किसी ना किसी को फॉलो कर ही रहे हैं ना, वो अपनी तरफ से कोई ख़ुद की तरफ से कोई बात बनाकर तो नहीं पेश कर सकते हो। तो ये तहकीक तलब है, वो मेरे भी तहकीक में नहीं है कि वो किस बात की तरफ कह रहे थे कि सहाबा किराम की तरफ से ये किताबत के अंदर गलती हुई। और उनका जो मौक़िफ़ ये था कि वो गलती जो इंसान की वजह से किताबत के अंदर भी हो जाए, अल्लाह ताला उस गलती को भी दूर कर देता है। उनका जो है पूरा जो मौक़िफ़ था कुरान की हिफाजत के हवाले से वो ये था। अब उसके अंदर अल्फाज का चुनाव है, उन्होंने बाज़ अल्फाज सहाबा किराम के मुतालिक मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो है ना इस तरह का लफ्ज़ जो बोला है वो उससे बेहतर कोई लफ्ज़ कोई इस्तेमाल कर सकते थे। बाकी सारी इल्मी बात थी वो, और मेरे ख्याल में उसमें कोई बुराई है नहीं। ठीक है, आपने बहुत नरमी करके उनके साथ बात कर रहे हैं आप, लेकिन बात लगता है कि इससे ज्यादा सख्त है। पीर साहब आए दोबारा, इन्होंने पहले भी बात की है, इन्होंने बताया कि हाँ मैं उनको ही माइक देने लगा हूँ। सिर्फ मैं रहील भाई को मैसेज देने लगा था कि आपके व्हाट्सएप के मैसेज का मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपने जवाब नहीं दिया था। जी पीर अस्कानी भाई। अच्छा, मैंने देख ली ये वीडियो, मैंने देखी है। उन्होंने अच्छा गलती तो फौश की है, फौश गलती, और वो ये है कि ये हम अच्छी तरह से हमारा बच्चा जानता है कि ये ज़बर ज़ेर, दो ज़बर दो ज़ेर, ये तो बात की बात है ना यार, आप ये उसकी बात कर रहे हैं। लनस्फ़अम बिन्नास, कि यहाँ जो है तनवीन ये गलती है भाई, ये तो बात की बात है। तो शुरू में तो ये तय ही नहीं, एक तो ये बात एक लंबी बहस हो जाएगी, उसको तो छोड़ दीजिए। बात ये है, बता ये जा रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को, यानी ये अल्फाज है उनके, अल्फाज क्या है, वहाँ लिखने में गलती हुई क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे, कातिब को बुलाया, वहाँ उन्होंने गलती की
गलती हुई, नबी अलैहिस्सलाम चूंकि उम्मी थे, अब इससे ऊपर कुछ नहीं कहा। आगे ये कहा कि आज तक उसकी इस्लाह नहीं हुई। तो इससे क्या जाहिर होता है? बेड़ा रोड खड़ਿਆ ਤੇ ਫਿਰ बेड़े गर्क कर ਦਿੱਤੀ ਐਡੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਭਰੇਗਾ। तो वो ये बताना चाहते हैं, क्या हो गया भाईजान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बात है। नहीं करें बात यह है कि वो ये बताना चाहते हैं, उनका खुलासा और जौहर ये है कि वहाँ पर क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम वहाँ चेक करने वाला कौन था? नबी। चूँकि नबी अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना नहीं जानते, अब हुआ क्या कि कातिब से गलती हुई और वो गलती वही रहा। ये है वो बात बताना चाहते हैं वो। लेकिन इतना नहीं मालूम कि गलती अगर हो जाए तो वही का जो है वो नुज़ूल जारी है, वो अल्लाह पाक की तरफ से उसकी इस्लाह हो जाएगी। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? तो बात उन्होंने 100% गलत की है, लेकिन उनका इरादा ये नहीं होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन तर्जुमानी में उससे गलती हुई है और उन्होंने जो माफ़ी मांगी है बिल्कुल कुला डुला उन्होंने ये कहा है कि मुमकिन है और हुआ है, तर्जुमानी में मुझसे गलती हुआ है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि नबी अलैहिस्सलाम की शान को बयान करना और कुरान की अज़मत को बयान करना, और टॉपिक ही यही था, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये बात बिल्कुल इससे मुझे तो कोई दो राय नहीं कि इतने बड़े आलिम दीन वो कुरान की तौहीन नहीं कर सकते, लेकिन उनको तर्जुमानी में वजाहत में गलती हुई है, ये बात दुरुस्त है। चुनाव में अल्फाज के चुनाव में अगर आप चाहें मैं आपको पेश कर सकता हूँ, आप देखें। यानी 2 पॉइंट आप एक आलमी दीन देखो, इंसान से 100 होता है। एक ये कि ये तनवीन ज़बर ज़ेर पेश ये तो बाद की शय है। ये कहाँ आप मिला रहे हैं कि ये ऐसा हो गया? उन्होंने कब लिखा? वहाँ उन्होंने तनवीन डाले थे। ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो बाद की बात है, सहाबा के दौर का भी नहीं है। अब दूसरी बात, जहाँ कहीं गलती हो जाए, जब अल्लाह पाक ने ये अपने जिम्मे लिया कि मैं हिफाजत करूंगा, गलती होने के बावजूद क्या अल्लाह पाक इस्लाह नहीं फरमाएंगे? वही जो है वो नाज़िल हो रही है, वहाँ इस्लाह हो जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं कि लिकाई में कुछ तब्दीली हो जाए, कोई गलती हो जाए जिससे मफहूम बदल सकता है, जिसपे कोई तान आ सकता है, जबकि कुरान मजीद का ये चैलेंज है कि इस जैसा कोई कलाम पेश करो, और जबकि ग्रामर में उसकी गलती है और अल्लाह इस्लाह नहीं फरमा रहे। ऐसा मुमकिन नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि वो गलती है, बात उनसे गलत हुई है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ज़ाती ख्याल जो आपने बात सुनाई है ना, उससे मेरा दिल इस तरफ जा रहा है कि शातमियत से ज़्यादा, क्योंकि हम ज़रा जल्दी कर देते हैं शातमियत कह के, शातमियत से ज़्यादा इसका नाम जहालत रखना चाहिए। शातमियत इसका नाम तो मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है। जहालत का मुजाहरा किया अगर इस तरह की कोई कतान नहीं है, कतान नहीं है शातमियत जो कहेगा, बल्कि जिस तरह आपने कहा जहालत और वजाहत में सव होना, वजाहत में उससे सव हुई है बस। शातमियत कौन सी की है कुरान के बारे में? शातमियत का तो इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए एक बंदा, क्योंकि शातमियत उसको कहते हैं जो अमदन बंदा ये कहता है कि कुरान में गलती है, कुरान गलत है माअज़ल्लाह, या इस तरह की कोई कहता है ना अमदन, तो फिर उसको आप कह सकते हैं कि ये कुरान की तौहीन कर रहा है, अल्लाह के कलाम की। लेकिन उसने अमदन नहीं की, अपनी तरफ से उन्होंने कोई मेरे ख्याल इल्म खिलारने की कोशिश की है, अपना जो है ना इल्म का छट्टा मारने की कोशिश की है, रोशनी डालने की कोशिश की है, तो उसमें जहालत साढ़े आ गए। सुनना चाहते हैं ये उनकी, अगर आप कहते हैं मैं उनकी ऑडियो चला दूं। हाँ अगर साफ है करवा सका जल्दी। कह रहे हैं साफ मेरे नहीं। खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में माज़ अल्लाह नक़ल कुफ्र ग्रामर की गलतियां हैं। जो मेरी बात है वो ये थी कि आप मेरा क्लिप सुन सकते हैं कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, ज़ाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है
मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ, ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसी की है कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, ज़ाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। जो है जैसे लिखा गया है चला रहा है, बड़े बड़े अपनी ग्रामर के माहिर रहा है, उन्होंने बताया सेंटेंस में तनवीन नहीं आती, दो जबर दो से दो पेश नहीं आते, नहीं आते, यहाँ आए हुए हैं, पता नहीं क्यों आए हैं, उसको लिखा ही ऐसे था। जिस किताब की मेरे भाई ऐसे हिफाजत हुई हो कि उसकी ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ हुई है, उसको ठीक करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, तो जो ठीक आए थे उनको कौन चेंज कर सकता है? कुरान मजीद में लनस्फाम बिन नासिया ये लफ्ज आम कायदों से हटकर है। आम कायदों में ये होता है कि जब आप फेल को लिखते हैं तो ऐन नून जबर अन के साथ लिखते हैं, अलिफ नहीं लिखते, आम कायदा। तो सहाबी रसूल ने इसको आम कायदे के खिलाफ लिखा है। तो इस आम कायदे के खिलाफ को मैंने यूं कहा ज़ाहिरी लिहाज से ग्रामर की गलती है। ज़ाहिरी लिहाज से, ज़ाहिर का लफ्ज बता रहा है कि हकीकत में नहीं है, तो ज़ाहिरी लिहाज से ये आम कायदे से बिल्कुल हटा हुआ है, 100% हटा हुआ है, यूं कहा है। तो इसमें हो सकता है मुझसे ताबीर में गलती हुई हो, अगर कोई ये समझता है कि मेरी ताबीर ठीक नहीं थी या ये बात अवाम के सामने करने की नहीं है, उनका मेंटल लेवल इतना ऊंचा नहीं है, वो ये समझेंगे गोया कि कुरान में गलतियां, तो मैं अपने अल्फाज पे मादरत करता हूँ और मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ। लेकिन मेरा मंशा हरगिज 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 कुरान मजीद की तौहीन नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा बयान कुरान की तस्दीक पे हो रहा है, कुरान की सदाकत पे हो रहा है। इसका एक एक लफ्ज जो है वो लौहे महफूज में महफूज है और उसी के मुताबिक लिखा गया, उसी के मुताबिक पढ़ा गया और अल्लाह की रात से निकला हुआ कलाम है। तो सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो, वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है, माज़अल्लाह। मेरा क्लिप आप सुन सकते हैं। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिहाज से जो मैंने ये बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, हमारे नबी के बारे में कोई उम्मत का इज्मा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। मैंने हरगिज हरगिज आपको अनपढ़ का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये तौहीन का लफ्ज समझता हूं मैं। मेरी तरफ किसी ने मंसूब किया कि मैंने ये कहा है कि मैंने नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहा है, हरगिज नहीं। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, ये लफ्ज उम्मी का तर्जुमा है और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया है। मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखना पढ़ना नहीं जानते फिर भी तमाम उलूम के हामिल है, क्योंकि आपने बराह रास्त अल्लाह से इल्म लिया है और अल्लाह के बाद मेरा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इल्म वाला इस कायनात में अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तो आप लिखना पढ़ना ना जानने के बावजूद सारी दुनिया को आपने पढ़ाया है, सारी दुनिया आपसे सीखने की मोहताज है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है और जब किसी का मोजज़ा बयान किया जाता है तो मोजज़ा उसकी तारीफ में होता है। फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। और मेरा अकीदा ये है कि मैं ये सादत समझता हूँ कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही है और आपकी सीरत ही है और आपकी ताज़ीम ही है जिसको लेकर हम दुनिया में घूम रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और हमारे जितने भी अहले इस्लाम है सबको, सबके दिल में अल्लाह पैगंबर की मोहब्बत और कुरान की सदाकत दिल में बिठाए। और जिन साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया, ये जो भी मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान के हालात मालूम है, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। और जी भाई आमीन पहली गल है, मैं सिर्फ छोटी सी गल करना चाहूंगा प्लीज भाई। सेकंड गल मुकम्मल होना तो फिर कर लें। यूसुफ भाई, मैंने ना आपको एक लिंक सेंड किया है, आप व्हाट्सएप पे ना उसको ओपन करके उसके पहले 6 मिनट चला दें। वो एक्चुअल वीडियो है जो ये बात कर रहा है, मुफ्ती साहब जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल वीडियो और उसकी ना ऑडियो साफ है, वो चला दें। जो पूरी बात वो बेसिकली पाकिस्तान का एक नामवर स्कॉलर मजहबी रहनुमा आलम ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਗਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰੇ ਕਾਬਿਲ ਫਖਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं भाई, समझ रहे हैं, ये कोई PhD स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं,
हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तफुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी जैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहाँ है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहाँ बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके, आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। आप कभी भी अरबी में सेंटेंस पे तनवीन नहीं डालोगे, लेकिन यहां लनस्फ़अन पे दो जबर डले हुए होंगे, अलिफ लिखा हुआ होगा। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। कातिब वही ने लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। और कमाल की बात है, जो लिखा आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उसको नून बना दे। अब कहने के लिहाज से ऊपर ऊपर से तो लगेगा ये गलत है, लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। कि भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। जो है जैसे लिखा गया एज इट इज चला रहा है। बड़े बड़े अरबी ग्रामर के माहिर आए, उन्होंने बताया सेंटेंस में तनवीन नहीं आती, दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आते, नहीं आते। यहाँ आए हुए हैं, पता नहीं क्यों आए हुए भाई, उस वक्त लिखा ही ऐसे था। तो जिस किताब की मेरे भाई ऐसे हिफाजत हुई है, उसको ठीक करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो जो ठीक आए थे उनको कौन चेंज कर सकता?
जवाब, और आइंदा जाके ना पब्लिक में ज़रा कुछ 6 महीने सब्र करना। मैं वैसे भी कहता हूँ कि अगर इस बंदे ने ये गलती की है तो 6 महीने इसको किसी जलसे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी मुजाहिद शरीफ ने आगे होके पता तो बाद च लगना है ना। वो ऐ नहीं सी ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਫਾ ਵਜ਼ਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲ ਮੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਜੂ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮਜ਼ਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੋ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੌਕਫ ਹੀ गलत है। आमिर भाई वो बेसिकली मैं भी वजाहती बयान ही सुन के आया था, लेकिन ये मैंने फिर वो दोबारा जाके वीडियो एक सुनी है, तो ये पूरा एक कॉन्टेक्स्ट था जिसमें मैं बात कर रहा था। यहाँ मैं भी फिर बाद में यही समझाऊं कि वो बात उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इनमें। इस नीरज खानी भाई आपने सुनी है मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ आ गई है? बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने अल्फाजों में बताया कि फौश गलती उससे हुई है। मतलब जो वो स्टोरी बना के सुना रहे हैं, जितना वो मौक़िफ़ पेश करें, यूसुफ भाई एक मिनट में उस पर आपके जो वो मौक़िफ़ पेश करे वो मौक़िफ़ ही गलत है ना। लफ्ज़ों के चुनाव में फ़र्क नहीं पड़ा, वो मौक़िफ़ ही गलत है। जो उसने कहानी शरीफ बना के सुनाई है कि वो लफ्ज़ अन था, नून से लिखना था, वो तनवीन डाल दी सहाबा ने या किसी ने लिखने वाले कातब ने, ये सारी कहानी शरीफ ही गलत है। बस जब फुकाहात में इंसान आगे चला जाता तो इसी तरह की फौश गलतियां करता है। और फिर जो इन्होंने माजरत की है ना, दूसरी जो ऑडियो जिसमें उन्होंने रुजू करने की कोशिश की है, उनमें भी उन्होंने ज़्यादती की है। मैं कोई और लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, ना मैं कहूँगा। उन्होंने ज़्यादती ये की है, उन्होंने सिर्फ वो उतना क्लिप जिसमें उन्होंने अपनी बात को मतलब गोल मोल जो थी ना उसको अंदर फिक्स करने के लिए जो छोटा सा क्लिप था ना, उसमें उन्होंने जो पिछला उनका बयान चला आ रहा था ना, तो उनको चाहिए था पूरे बयान से अपने रुजू करते मेरे से गलती होगी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया कि मेरा मकसद ये नहीं था, ये था। वो छोटा सा क्लिप चलाया, जबकि अपनी बात की वजाहत वो पहले कर चुके हैं जो वो कहना चाह रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहता था यूसुफ भाई। नहीं बहुत वड्डी फौश गलती की थी, बिल्कुल सही किया पीरस खानी भाई ने। और ਉਹਦੀ गलती दी इस्लाह ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੀਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅਕੀਦਤ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਕੀਦਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਡਾ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਬ ਝਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ, नबूवत अंदर जा रही है, उम्मत के अंदर नबूवत जा रही है, मतलब ब्लंडर की है, जहालत दी कह लो कि इंतहा कर दी है। और ओदी वजह अल्लाह माफ़ करे वो शायद यही होगी कि जी सरकार फरमा रहे सन उत्थे ही उस मौके ते ही कि इब्ने अरबी नूं कोई नहीं समझ सकिया सिवाए मेरे। कोई मौलवी नहीं, किसी नूं नहीं पता लग सकता उस गल दा जिहड़ी दा मैनूं पता। ये बहुत बुरी गल हुंदी है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। किबरियाई अल्लाह दी चादर है। जिहड़ा बंदा इनू हथ पाने की कोशिश करता, भावें अनजाने में भी पाता है, मतलब जहालत की वजह तो यहो जी गल करता है, उसकी पकड़ जरूर होंगी, उत्थे ही होंगी, तली ते सरियों जमदी में देखी। अल्लाह ताला तकबर तो सब तो पहले बंदे नूं महफूज रखे। जिहड़ी उलमा या बंदे जिहड़े सारा दिन लगे रहंदे ने ना बोलन, उन्हां दी गलती का इम्कान हर बंदे कोल हुंदा है, नहीं कि भी इम्कान नहीं हुंदा। लेकिन जदों यहो जी गल जिहो जी मुफ्ती साहब पे करते हैं, समझो कोई गुनाह ने की, समझो कोई गुनाह ही अगे आ गया, बस छोटी जी गल नहीं है, बहुत वड्डी जहालत, काफी वड्डी जहालत। शरीफ किधर गया पप्पू? गया तो सिग्नल नहीं चाहिए।
ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ। ਦੂਸਰਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰਜੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗਲਤ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, अगले का मेंटल लेवल खराब है। ठीक है, नाउन टू नाउन कौन सा आपने माइक खोलो बोलो। वो एक किसी भाई ने बोला था कि वो लिखा उस टाइम पे लिखा था कुरान, मैंने जब तक देखा है उसमें वो तो बाद में नहीं लिखा गया था। नहीं उसी वक्त लिखा गया था, वो यही तो कह रहे हैं, कहानी शरीफ यही तो सुना रहे हैं ना कि सहाबी ने तनवीन डाल दी, हालांकि तनवीन तो तनवीन तो बाद में डली है, ये तो जहालत है। उस वक्त तो हिफ्ज नहीं हुआ था सिर्फ। नहीं लिखा गया, सहाबा ने लिखा हुआ था सारा कुरान लिखा हुआ था, वहां पर तख्तियों पर, खजूर के पत्तों पर, पत्थर की सिलों पर लिखा हुआ था सारा, चमड़े की। और उम्मीद से मुराद वो दुनियावी पढ़ाई लिखाई ले रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मियों में मबूस हुए थे, तो वो उम्मी फिर कैसे लिखना पढ़ना जानते थे? कोई बात उसकी मिल नहीं रही आपस में, पे इंतहाई गलती की है। मैंने जिसमें पढ़ा है कुरान की है, हदीस भी नहीं है, कि वो 10 सूरतें करके वो हिफ्ज की थी ताकि उसको समझ भी आ जाए कि उसमें गलती ना हो। हिफ्ज भी भाईजान बहुत ज्यादा, तकरीबन ज्यादातर सहाबा को हिफ्ज भी था, लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी जुबान भी थी, लेकिन लिखा हुआ भी था, कुरान मौजूद था, लेकिन मुख्तलिफ उसकी ये बने हुए थे, हिस्से थे। ये नहीं है कि इकट्ठा किताब की शक्ल में लिखा हुआ, ये नहीं मैं कह रहा, अभी नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर आयात म्यूजियम में कहीं पे वो ओरिजिनल वाला लिखा हुआ कहीं पड़ा हुआ है, अब पड़ा हुआ है, अब तो शायद ना मिले, पड़ा तो है 1400 साल पुराना जो नुस्खा है ना आमिर भाई। नहीं वो तो हजरत उस्मान वाला तुर्की के है अजायब खाने में, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि वो खालों पर जो तख्तियों पर लिखा हुआ था, पत्थरों के सिलों पर लिखा हुआ था, उस तरह का सहाबा के लिखे हुए शायद ना मिले, हमारे इल्म में नहीं है, अगर है कोई शायद किसी जगह महफूज, क्योंकि 1500 साल में तो अगर खाल पे लिखा है वो भी नहीं सही रह सकती, पत्थर की सिल पर हो कुंदाकारी की हुई हो तो शायद रहे, लेकिन वो भी बहुत मुमकिन है कि ज़ाया हो, क्योंकि इससे भी काफी जगह बहस रहती है कि उस टाइम पे तो लिखा ही नहीं गया था। मेरे दादा जान की जो कब्र है ना, वो 1970 में मैं पैदा हुआ, तो 1970 में ही वो फोत हुए थे, यानी मेरी पैदाइश से कुछ महीने शायद पहले बताते हैं बुजुर्ग। तो उनकी कब्र पर मैं छोटा था, तो मैं देखता था कुंदाकारी करके लिखा हुआ था, यानी तख्ती वो जो होती है ना पत्थर की सिल, उसके अंदर वो नक्श था, उनका नाम वगैरह। तो अभी मैं पीछे गया हूँ तो वो हो गया है, वो उसकी जो कुंदाकारी है वो भी ख़त्म हो गई है, यानी कितने साल, 50 सालों में उसकी जो कुंदाकारी है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। पत्थर की सिल हो तो वो भी हो जाती है, हवा गर्द मिट्टी इसके अंदर मिक्स होती रहती है ना हवा के अंदर। हाँ, उसको शीशे के अंदर पहले दिन से रख दिया जाए तो शायद वो महफूज रहे। बाकी सब जो हैं चमड़े की खालें, खजूर के पत्ते या लकड़ी की तख्तियाँ, ये तो बदरजा उल्ला गैर महफूज चीज़ें। सबसे ज़्यादा महफूज और सॉलिड तो पत्थर की सिल होती है ना, वो भी नहीं रहती है 1500 साल में। तो अगर उसी वक्त लिखा गया तो लेकिन बहरहाल कुरान लिखा थे, वही वाली अरबी लिख रहे थे या फिर दूसरी बुक में ले दो, क्योंकि इसमें बोलता था हाँ रस्मुल खत और हो सकता है, उस जमाने में रस्मुल खत और हो, लेकिन बहरहाल लिखने में वो अल्फाज तो यही हैं जो कुरान के अभी भी मौजूद हैं। छोटा सा सवाल है मेरा नान भाई, सॉरी माजरत चाहता हूँ कि जो असहाब ने कुरान हिफ्ज़ किया था वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिफ्ज़ किया था?
हाँ बहुत अच्छा। उनसे ही सुनकर सब ने, नबी अलैहिस्सलाम ही सहाबा को आयात सुनाते थे तो सहाबा ही फंस कर। फिर इसमें तो कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। जब तारक मसूद साहब बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ही एक उल्टी कहानी बयान कर रहे हैं। नहीं, सारा मौक़िफ़ ही गलत दिया, सारा मौक़िफ़ ही गलत पेश किया। जो उन्होंने बात बयान की है वो बात ही सिरे से गलत है ना। बाकी तो अल्फाज का चुनाव तो चलो हो ही जाता है किसी न किसी से, तो बात ही गलत है, मौक़िफ़ ही गलत है सारा। सामने बिठा के कोई बंदा पूछे भी ये जो आप मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, किससे आपने पढ़ा है, कहाँ से आपने ये कहानी शरीफ अखज़ की है? अपने अक्ल से जोड़ तोड़ आप किया, इकरार के किसी की आपने पढ़ी, किसी मुफस्सर की ये बात पढ़ी है या किसी आलम की ये बात लिखी हुई आपने पढ़ी है? ये तो कहानी शरीफ गलत है। एक ना छोटी जी गुजारिश करना चाहना वा, थल्ले बैठे कुछ मरज़ई ना कह रहे ने गलत आखो हुण मुफ्ती नूं गलत, तो असीं कह रहे हैं अल्लाह दे बंदे हो, है तो तुसीं अल्लाह दे बंदे ही हो। असीं इत्थे बह के ओही पिटदे हैं कि गलत आख्या मुफ्ती ने, और बहुत ज़्यादा गलत आख्या। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਫ ਬਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਲ ਲਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦਾ ਢੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਬੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਆਪੂ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਤਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਇੱਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, 3-4 ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹੀਏ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਲੈ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੈਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਰਜ਼ਈਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਰਜ਼ਈਓ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜ਼ਿੱਲੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ ਕੋ ਤਾਂ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਤੇ हैं। ਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਹੀ ਲਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਦਨ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ अपनी सलाह कर, तौबा कर। कानी साहब बैठे हैं और नाउन भाई बैठे हैं, इनको मेरे ख्याल से पंजाबी नहीं आती, तो मैं चाहता हूँ उर्दू में बात कर रहे हैं। समझ आती है मुझे, लेकिन उर्दू नहीं आती। पता क्या मसला, अच्छा पता क्या मसला बना है अमर भाई? मैं गया हूँ ब्रॉड से ना गुजर रहा था, तो मुझे कहता है रुक जा, अगर ये हो गया वो हो गया, अगर तेरे में हिम्मत है तो ऊपर ब्रॉड पे आ। मैं चलो इन्हें गालां ही कढ़नियां ने, तो मैं जट ते ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਣਾ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਕ ਮਸੂਦ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ये वीडियो सुन। मैं कहा जी सुनाओ। उसने वीडियो सुनाई तो मैंने उसी वक्त कह दिया कि ये सारे के सारे अल्फाज इंतहाई, यानी कि मैं तो ये अल्फाज यूज़ किया कि अल्फाज बिल्कुल घटिया अल्फाज है जो इसने इस्तेमाल किए हैं। मुझे नहीं पता ये पीछे जो, मैं वीडियो तो नहीं देख रहा, तो तारक मसूद साहब ही हैं या तुम्हारी कुछ चलाकी है। मैं उस टाइम पे मैंने उस पर ना तारक मसूद साहब के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। हाँ अलबत्ता अल्फाज जो थे वो इंतहाई मुझे नामकूल लगे और घटिया लगे।
یعنی کہ اسی وقت پھر میں کہا اچھا شکر ہے جی تو آپ نے بھی مانا ہے کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو کب اس کا سر تن سے جدا کر رہے ہیں، کب اس کو جیل میں ڈال رہے، جی ٹھیک ہو گیا، کب اس کو جیل میں ڈال رہے ہو؟ تو میں نے کہا صبح میں جاتا ہوں، میں پکڑوا کے اس کو جیل میں پھر آ جاتا ہوں. یعنی کہ ابھی یعنی ڈسکس یہی ہو رہا ہے. دیکھو جی مفتی طارق محمود ہوئے یا کوئی بھی مسلمان ہوئے دنیا دے اتے ہن پھر تو کہنا کہ اردو چ گل کر تے اردو میں بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان ہے، چاہے وہ مفتی ہے، وہ عالم دین ہے، وہ اس کا کوئی بھی کیڈر ہے، اگر تو وہ اپنی غلطی پر بضد ہے کہ نہیں میں نے یہ غلطی کی ہے تو میں اس عامر بھائی موڈ کون ہے؟ پیر صاحب کدھر گئے ہیں؟ نہیں میں سارے نو تھلے لاتا ہے. ہاں جی سارے اتنے بیٹھے ہیں، یوسفی بھائی گل کر رہے ہیں، انہوں نے بھی تھلے. میری مرضی. یار علی انج نہ کریا کر یار، بڑا امپورٹنٹ گل ہو رہی ہے. اتارا صاحب کو یہ دیکھیں آپ نے تو ایک منٹ یار اللہ اکبر. عامر صاحب جانن تے میں جانا تو نہیں وچ بولدا، ٹھیک ہے؟ عامر صاحب جانن تے میں جانا براڑ مالک، عامر تو نہیں ہے. وہ کی ہو گیا ہے؟ میں نے اتارا بجال عامر بھائی بولے ہو، عامر بھائی بولے ہیں یار معافی دے دے. 6 ستمبر ہے بھائی تساں اپنے اپنے مزاج چلا کے وکھانے نے کر دیو. بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انہوں نے اگر بات کر دی تو برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں. اس دن عامر بھائی نے اتارا ہے غصہ. دیکھیں عامر بھائی آج مجھے بولے ہیں، میں نے سب کو اتارا ہے. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، پیر صاحب کر سکتے ہیں غصہ، کوئی ایسی بات نہیں. عامر بھائی کریں، آپ کریں، میں کروں، یہ حرکت جو ہے نامعقول حرکت ہے بھائی. چلو ٹھیک ہے، ہوگی ہے بات. ایک بات کرو آپ بات سٹارٹ کرو آپ. بس کرو، چپ کرو، یہ مسئلہ وہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، مت کرو، ٹھیک سب کو اتار دیں، تو یہ تو غلط بات ہے نا بھائی. جی یوسفی بھائی میں نے گل ہی بھلوا دیتی میں کی گل کر رہا سی. میں نا ہے کہ مسلمان اگر کوئی بھی ہے نا، اگر اودا کسی بھی کسی بھی مطلب کوئی مفتی ہے یا عالم ہے یا ٹیچر ہے ایون، تے وہ اگر اپنے آپ نو مسلمان کہہ کے اپنے آپ نو عالم کہہ کے کوئی ہلکی گل کردا ہے اسلام دے خلاف، نفوس قدسیہ دے خلاف، شاعر اسلام دے خلاف، اگر واقعی ہلکی گل کردا ہے اور وہ تے قائم رہندا ہے کہ نہیں جی میں یہی میرا موقف ہے، تو پھر تو تاجرات پاکستان یا شریعت دے مطابق جو دی سزا بالکل انہوں ملنی چاہیے. وہ بھاویں سر تن تو جدا ہوئے یا قید ہوئے یا جو بھی ہے. اگر کوئی بندہ رجوع کر لینا ہے کہ وہ کہندا ہے کہ جی میرے کو غلطی ہو گئی، میں دے تو معافی مانگنا وا اور میں آج تو بعد توبہ کرنا، تو اسلام وہ بھی تعلیم دیندا ہے وہ دے واسطے. بہت اچھے مباسک صاحب آئے ہیں جناب، انہیں ذرا موقع دیں. یوسفی صاحب وہ جو کوئی اور غلطی کرتا ہے، جیسے سری لنکن تھا، اس کی تو غلطی کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کیا، اس کو رجوع کا یا ایکسپلینیشن کا موقع دیا تھا. اور جو آسیہ تھی اس نے عدالت میں کھڑا ہو کے بار بار کہا کہ میں نے نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی، لیکن آپ کے علماء تو ماننے کو کسی صورت میں تیار نہیں تھے، اور یہاں تک کہ گورنمنٹ کو اسے سیکرٹلی پاکستان سے باہر نکالنا پڑا. اور اس کے علاوہ بے شمار کئی لوگ کہ جن پہ تھوڑا سا شک بھی پڑتا ہے کہ جی اس نے قرآن کے اوراق کو جلایا ہے یا بے حرمتی کی ہے، صرف ایویڈنس دیکھتے ہیں جی قرآن کے اوراق جلے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کس نے جلایا ہے، کیوں جلایا ہے، یا اس کی اجازت بھی ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کو ڈسپوز آف کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ جلا دو، اس کی بجائے کہ نہروں میں پھینکو، نہریں بلاک ہو جائیں اور بند ہو جائیں، پھر بھالے صفائی کرتے پھرو.
तो उसके ऊपर तो आपके उलमा बिल्कुल नहीं बोलते। और आज एक इतना बड़ा आलम कि जिससे आप सब इस्लाम सीखते हैं और उसने नाउज़ुबिल्लाह पूरे कुरान को कह दिया कि गलत है जी, ग्रामेटिकली गलत है, अनपढ़ लोगों ने लिखा, ना लिखाने वाले को पता ना लिखने वाले को पता, तो बस ही वो मिस्टेक चलता आ रहा है। और इसलिए अभी जो गैर मुसलमान हैं वो तो उंगली उठाएंगे जी कि देखो ये मुसलमान खुद कह रहे हैं कि इनका कुरान जो है सही नहीं, इसमें कंफ्यूजन है। अहले कुरान तो यही कहते हैं। कर लेने था कोई बंदोबस्त, तुझे फिक्र ना करे था करने को नहीं, बंदोबस्त तो क्या करना। नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं कि जो कुफार हैं वो जो है ज्यादा इनकी बात को उठा के गलत सलत करके और ज्यादा बिगाड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये जमील साहब बात ये है, मिर्जाई भी उनमें अच्छा बात ये जमील साहब अभी आप बताएं आपने की श्रीलंकन की आपने बात की, श्रीलंकन को सजा जो है ना स्टेट ने नहीं दी थी, वो कोई जाहिल थे जिन लोगों ने ये काम किया, जो हरकत की है, उनके खिलाफ कानून ने जो भी कानून कर सकता था वो आज भी शायद कैद में, आज भी उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। दूसरी बात आसिया की बीबी की आपने की, आसिया बीबी को अगर पकड़ा, उसने रुजू किया या उसने अपने बयान से दस्तबरदारी का इजहार किया, तो अदालत जो समझती थी कानून, मैंने पहले ताजरात पाकिस्तान का जिक्र किया था, जो कानून ने समझा उसको रिलीफ दिया और उसको वहाँ से ज़िंदा जो है ना वो किसी दूसरे महफूज मकाम पर उसको पहुँचा दिया। तीसरी बात आपने की कुरान पाक के औराक जो हैं वो नहरों में नदियों में बहाए जाते हैं, वो भी वही लोग हैं जो लोग समझते हैं कि शायद ये यहाँ पे बहा देने से ये ज़्यादा महफूज हैं, वो भी जहालत है, वहाँ नहीं बहाने चाहिए। उलमा इस चीज़ से बिल्कुल रोकते हैं और नहीं करना चाहिए। लेकिन उस बंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के नामे नामी का इस्तेमाल करके और कहा कि मोहम्मद फिर उतर आए फिर जहाँ में पहले से देखने हो अकमल, वो आके देखे कादियाँ में, तो उसकी तहरीर को चूम चाट के जो बंदा अंदर रख ले, उसके खिलाफ आपने क्यों नहीं आज तक एक्शन लिया? जिसने एक ऐसे आदमी के बारे में ये बयान दिया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के बारे में अलिफ बे भी नहीं जानता, उसने एक ऐसे आदमी के साथ मिला दिया उस शख्स को जो अपने आप को ज़िल्ली और बरूज़ी तौर पे कहता। वो तो मुकम्मल इंसान भी अपने आप को खुद को नहीं कहता, ज़िल्ली और बरूज़ी खुद को कहता है। तो उसके साथ एक ऐसी हस्ती को मिला देना कि जिसको सरदार अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम को अंबिया का सरदार कहा गया है, तो उसके साथ मिलाना, उसकी तहरीर को चूम चाट, उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया आज तक? वो आपने कोई कानून बताया था, पता नहीं ताजदार। वाह यूसुफी साहब, मैं हार गया। तो जो किया मसूद साहब ने ठीक किया, तो कंटिन्यू रखें इसको, शाबाश। ये मुसलमानों के अंदर ही गैरत है ना कि मुसलमान जो है कोई बंदा हल्की बात करे उसके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल जी, एक्शन लेते हैं। गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, लेकिन ये दूसरी कौमों में नजर नहीं आता। मुझे माफ कर दें, आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपके स्कॉलर भी ठीक है, बिल्कुल जी ठीक किया आपने, शाबाश। कंटिन्यू मुसलमानों। ये कुफार का चेहरा है ना कि आप इसको ठीक कहते हैं, मुसलमान तो नहीं ठीक कहते। हमें आपने मुसलमान कभी कहा? मुसलमान तो नहीं ठीक कहते ना, मैं कब आपको मुसलमान कह रहा हूँ? मैं तो कब आपको कह रहा हूँ? मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ कि कुफार का ये तरीका है कि गलत को सही कहना, सही को गलत कहना, ये तो कुफार का तरीका, मुसलमान नहीं ऐसे करते। अच्छा, आपने अगर यहाँ पे आके हम लोगों से बात की है तो हम तो कहते हैं कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये गलत बात है। नहीं ठीक है, ठीक है, शाबाश शाबाश। कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। नहीं, अब आपके पास रोक दो यार, कंटिन्यू तो हम बात करते हैं। चाहते ये बम्बास्टिक साहब के मुफ्ती तारक मसूद साहब नाल वही सीन होवे जेड़ा बाकियां नाल होया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਹਾਰਡ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਬਸ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜਾਣੇ, ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ बेहतरीन ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਆ ਹਮਾਰੇ ਨਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਨਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ पे ਡਾਕੂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, तो उन्हें पहले सजा देनी चाहिए है या भूखे नंगे आवाम ते बंदे थे? अब आप नहीं जानते ये किस वजह से बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि जो बाकियों से हुआ है उसको भी हमने कंडेम किया, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है 295 से, वो भी एक उस पे यानी कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
आपका 295C हरकत में आ चुका है। یہ وہ کر رہی ہے, اس کے بعد بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے, اس نے کچھ کر دیا, اس پہ بھی 295C ہے. 2 آئے گی, 302 ہاں جی 302 307 بھی آ سکتی ہے. لیکن ان کی تحقیق نہیں ہوگی جنہوں نے اس کو, حکومت نے غلط کام کیا. دیکھیں آپ نے ایک لاسٹ ٹائم ایک واقعہ ہوا کوئٹہ میں, قرآن کی بات نہیں کر رہا, اس بندے کو ویسے ہی کسی بنا جرم میں اٹھا لیا, وہاں پہ FIR کاٹ کے اس کو جیل میں ڈال دیا, مارا وارا, وہ باہر آ کے تو پاگل ہی ہو جائے گا. یہ آپ میرے خیال سے آپ کچھ نہ یہ تو بھائی اب میں کیا بولوں, بغیر بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. مفتی مبشر میں بھی 295C جو تھی وہ حرکت میں نہیں آئی تھی جب اس نے کہا تھا کہ مدینے کے کیلے جو ہیں وہ کھانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں. اس کی ویڈیو بھی ہے, وہ آج بھی مفتی ہے, فتوے دیتا ہے, جناب من. کیا بات ہے, کیا چاہتے کیا ہیں, کیا چاہیے آپ کو؟ بھائی میں کیا پدی کا شوربہ میں نے کیا جاننا ہے جی, جدے کاری چ دانے ہو دے کملے بھی سیانے, میری کیا اوقات ہے. میں آپ کو دانے بھیج دوں گا دانے, ٹھیک ہے. ابھی ہمارے ملک میں بھی نہیں, اور بھی آس پاس کے ملکوں میں وہ جو چل رہا ہے, ادھر بھی عوام کا ایک وہ رہتا ہے کہ ہم نے تو ادھر ادھر جو حالات خراب ہیں, انہوں نے اسلامک کنٹری رکھا ہوا ہے, ایران کی بھی آپ پڑھ لیں, اور سزا وہ اسلامک نہیں. آپ یہ نا پولیٹیکل بات کر رہے ہیں, یہاں پہ صرف اور صرف ریلیجیس بات ہوتی ہے جو ریلیجن کے ریلیٹ ہو, آپ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. نہیں, اگر میرا ملک ہو اور اس میں 70% بولے بھائی ہم نے ریلیجن ہی نہیں ماننا, یا ریلیجن تب مانیں گے جب تم ہمیں ملک دو گے. کیا یار, مجھے میرے پاس نہیں ہے جواب. آپ ہمارے بھائی موجود ہو, ماننے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ جواب بھی نہیں ہوتا نا مفروضوں کا. کیا ایسے مفروض اگر بندہ پیش کرے تو اس کا جواب ہوتا بھی نہیں ہے. وہ چلیں وہ دل بہلانے کے لیے بات کر رہے ہیں, ایک کنٹری سے وہ کمپیئر کر لیا جاتا ہے. ہاں وہ ایک پرابلم رہے پاکستان میں, افغان اور وغیرہ, لیکن اگر جو چیزیں نہ دی ہوئی ہوں وہ جو دے سکتی تھی حکومت, اور اس کے بعد بھی اس کو عوام کو کسی غلط اس میں یا وہ لگانا, یا دیکھیں آپ پاکستانی عوام کا بھی بہت سارا قصور ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس بات کے اوپر میں آپ کو کر دوں, یہ پاکستانی عوام کا بھی بہت سارا قصور ہے. ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ پورے کا پورا اختیار ہے کہ وہ انسان اپنا نمائندہ خود چن سکتا ہے. ڈیموکریٹک آپ میرے خیال سے بہتر جانتے ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تو آپ صرف یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرنا میرے خیال سے بے فضول ہے. فضول ہے یہ. ہاں وہ کا انصاف تو ہے ہی نہیں وہاں پہ کہیں بھی, تو صاف یا کوئی بھی, آپ وہی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا نا, تو اس سے آگے میرے خیال سے بات کرنا مناسب نہیں ہے. جو چیز آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ اس ٹاپک کے لحاظ سے یہاں پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا, معذرت کے ساتھ. مطلب دنیاوی جرم کی سزا سے وہاں بچ جاتا ہے بندہ, اگر ایک کتاب پھاڑ دے تو اس کے لیے وہ مر جائے گا. کسی کا قتل کر دے تو بچ جائے گا. ایک کتاب کوئی وہ کے لیے بھی نجف بھائی, جو ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ایک پولیٹیکل اختلاف کے اوپر بھی بندہ مار دیا جاتا ہے. خالی مذہبی اختلاف کے اوپر نہیں, پولیٹیکل اختلاف کے اوپر بھی بندے مار دیے جاتے ہیں. میں تو کراچی سے تعلق ہے میرا, یہاں پر ہم نے مرتے ہوئے دیکھے ہیں لوگوں کو صرف سیاسی بنیاد پر, ٹھیک ہے. تو ملک کا جہاں پر قانون کا نفاذ ہی برا حال ہو, تو آپ وہاں پر نکال کے خالی مذہب کو جو ہے ٹارگٹ نہیں کر سکتے. ہر لیول کے اوپر یہاں پر معاملات خراب ہیں. بات جس طرح نجف بھائی بول رہے ہیں, یہ ہمارے یہاں پر ٹاپک ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ورنہ آپ نے اگر دیکھنا ہے تو ممالک دیکھ لیں, آپ گلف ممالک دیکھ لیں, یہاں پر تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. یہاں پر بھی اسلام کا نفاذ ہے, یہاں پر بھی وہی لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر یہاں کی مثالیں دیکھ کر آپ آگے بات کریں نا. ہاں وہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے لیولز پہ بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں, چاہے سیاسی اختلاف ہو, چاہے آپ کا کسی بھی چھوٹے لیول کے اوپر آپ کا اختلاف ہو جائے. وہ بھی کی سازش ہے, کیونکہ وہ جو ہے مرزائی تو ہر جگہ اپنا ہاتھ دھونے کی کوشش کرتے ہیں نا. مرزائیوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ گھس کے پاکستان, اور اس سے جیلسی کرتے ہیں, جلتے ہیں لوگ, اور اسلام کا کلا ہے پاکستان, اس وجہ سے سازش ہو رہی ہے. بھائی ایک منٹ,
हाँ जी बिल्कुल जलन होती है हम लोगों को। मसला ये है, आप अपना बताएं, अपने घर का हाल बताएं। वो निदान नसर का क्या बना उसके केस का? उसने जो अर्जी डाली थी अपने खलीफा के सामने और जो इतना उसने शवाहिद भी पेश किए, ऑडियोज भी आई, आपके खलीफा ने उसके ऊपर क्या किया? पाकिस्तान के ऊपर चलें बाद में बात कर लेंगे, मजहबी थोड़ी बात कर लें हम लोग। जी, वो खलीफा साहब ने उसे परमिशन दी थी कि आप अदालत में चले जाएं, और वो भी इंग्लैंड की अदालत में, और पाकिस्तान तो वो दोनों में गई है। तो पता नहीं इस्लामी जो पाकिस्तान है वो क्या फैसला करता वो है। कह रहे और थे कि खामोश हो जाओ, वो बंदे ने माफी मांग ली होगी, बंदे ने माफी मांग ली होगी, बातें तो ये चल रही थी वहाँ पर। मैंने नहीं सुना। अगर आपका अब आपने कुछ नहीं सुना, आपने पूरे तारिक मसूद को सुन लिया, उसके ऊपर आपका पूरा तबसरा आ गया, आप अपने खलीफा को नहीं सुना। तारिक मसूद के घर गया हूँ, सुना मैंने, ये टिकटॉक पे मैंने सुना। की हो जाती है। अब इहलाक से गिर के ना करें, इहलाक से गिर के बात ना करें मुबासिक से। नहीं, इखलाक से गिर गया हूँ मैं, ये निदा नसर की बात कर नहीं तो आप अपने घर की बेटी को समझाओ फिर। वो क्यों अदालतों में जा रही है, अपने केसेस को सोशल मीडिया कर रही है? मेरे घर की बेटी तो नहीं है, मेरी बेटी है। खलीफा की बेटी नहीं है आपकी, खलीफा की नवासी, सॉरी आवाज कट रही है आपकी। तो आपके कई मुसलमानों ने जो हीरा मंडी खुली, वो आपकी बेटियां नहीं है, बहनें नहीं है? आपके तो हर घर में ये केस हो रहा है। कहते हो तो मैं अभी तुम्हें ऑडियो, यानी कि आपके घर में जायज है? कर रहे हैं लेकिन आपके घर में जायज है, जायज है ये। अगर आप इसको ऐसे, अगर आप इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपके घर में जायज है। मैंने तो जस्टिफाई नहीं किया। अगर जस्टिफाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आपको फलाता तेरे घर वो होता है, तेरे घर वो होता है, मेरे घर ये। अगर बाप ने बेटी के साथ कर लिया तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। यार आपका तो हर बाप कर रहा है, रोज कंटिन्यूस। लानत है उन पे, लानत है। अगर मेरे सामने हो तो मैं काट के फेंक दूं, और कोई बात। तो जा काटो फिर सब। नहीं, पहले लुकमान को ना काटूं। काटो, तो आप लोग क्या समझते हैं कि कोई जाओ काटो, नजफ अब्बास जाओ। इस्लाम अगर पाकिस्तान में आता और ये सब हालात होते तो वहाँ पे कभी आगे बढ़, वहाँ पे निजाम मुस्तफा है, जियाउल हक साहब ये कायम करके गए हैं। वो तो वहाँ से पुराना आया हुआ है ना, तभी बढ़ा। अच्छा, पुराना है, नया नहीं आया। आप नाम साहब, मुझे समझ नहीं आ रही है बात पे, यानी कि उसको पॉलिटिकल लेके आ रहे हैं। इस्लामिक कानून आपको क्या लगता है? नहीं, इस्लामिक लॉज में आपने क्या क्या पढ़ा है? मुझे पहले वो बता दें कि अगर आपको जो कानून अच्छा नहीं लगता वो बताए ना पहले, फिर उस पर एक कानून पे डिस्कस हो सकती है। मैं बता देता हूँ। एक वो उनकी लास्ट स्पीच थी कायदे आज़म की, आप सुन लीजिएगा। उन्होंने ये कहा था मजहब का, हुकूमत, मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। अकीदा भी उन्होंने बोला, हिंदू और वो एक उसका मुस्लिम अपने अपने मर्जी, तमाम मज़ाहिब अपने अपने अकीदों में आज़ाद हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही कहा था उन्होंने। कभी देखे किसी क्रिश्चियन के जाके कहा ममलिकत पाकिस्तान क्यों बोला था और ये क्यों बोला था ये हुकूमत से अलग रहे? हुकूमत तो उसका मानती है ना कानून को। बात समझ नहीं आई। जमहूरियत, फिर वो भी बात आ जाएगी आपकी। दोबारा कीजिएगा बात। ये मैं कह रहा हूँ उनकी लास्ट स्पीच में उन्होंने क्लियर ही कहा है कि हुकूमत का आपके अकीदे या मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, जमहूरियत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज़म जो था ना वो भी शिया था। वो अनून साहब बात ये है, अनून साहब बात सुने, ये अक्सर ये बात की जाती है कायदे आज़म के बारे में, उन्होंने ये स्पीच दी, वो स्पीच दी। कायदे आज़म अभी हमने यहीं पर ही देखा ना, मौलाना तारिक मसूद की तकरीर से भी हमको इख्तलाफ था तो हमने बात की, ठीक है। तो कायदे आज़म की तकरीर से भी इख्तलाफ हो सकता है, उनकी बात से भी। ये पाकिस्तान उनकी मिल्कियत नहीं थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उसके बरक्स अगर कोई चीज़ हो रही है, क्योंकि वहाँ पर इस मुल्क पाकिस्तान में लोग जो हैं उन्होंने इस्लाम के नाम पर अपने घरों को छोड़ा, जिनमें मेरे ख़ानदान वाले भी हैं, ठीक है। आप बाद में बात कर ले बाबा, बाद में कर लीजिए, ठीक है ना। इस्लामी मुल्क बनाने के लिए लोगों ने अपने घर बार को छोड़ा, ठीक है ना, और मकसद भी उनका यही था। चीज़ें कवानीन आई यहाँ पर, और ये ज़रूरी है कि जहाँ पर मुसलमान की अक्सरियत हो वहाँ पर इस्लामी शरीयत का ही निफाज हो। उसको लोगों ने अगर बीच राह चलते चलते मिसयूज़ किया, पॉलिटिकली मिसयूज़ किया, तो ये लोगों की गलती है, इसमें इस्लामी शरीयत का कोई कसूर नहीं है। और ना शरीयत ये कह सकते हैं कि भाई कायदे आज़म साहब ने चूंकि वो तकरीर की थी। अब हम राहील भैया ये बताओ कि आपके वालिदैन तो आगे, तो जो अभी 24, 25, 26 करोड़ मुसलमान उधर ही रह गए, उनका दिल नहीं करता था कि इस्लामी मुल्क में आते, वो हिंदुओं के साथ ही रहना पसंद करते हैं। कई लोग आना चाहते थे, नहीं आ पाए।
कई लोग नहीं, आना मैं चाहते वही थे, कह रहा नहीं आ हूँ, पाए। क्यों नहीं आए पाए? ठीक है, इस्लाम की खातिर उन्होंने तो क्यों नहीं कुर्बानी दी? हम हर किसी के मुकल्लफ नहीं है ना, जो जिसने स्टेप लिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी भी क्यों नहीं आ जाते? आ सकते हैं तो चाहे तो आ हाँ जाए। वही मैं कह रहा हूँ, आ जाना चाहिए भाई। हिंदू मैं भी एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक चीज पूछना मैं भी चाहता हूँ यार। ये सवाल मेरा बम्बासिक साहब आपसे है कि आपने जब ये अहमदियत कबूल की तो पाकिस्तान क्यों छोड़ा, वजह क्या थी? अहमदियत कबूल की तो पाकिस्तान को छोड़ा, मतलब क्या? हाँ, मैंने बहुत सारे लोग हैं इस वक्त वो यही चाहते हैं कि वो मैंने अहमदियत कबूल नहीं की, मैं तो पैदाइशी अहमदी हूँ। जिन्होंने कबूल की, तो फिर आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, मतलब वहाँ पे क्या इशू था? इसलिए कि पाकिस्तान में हर कोई पाकिस्तान को छोड़ना चाहता है, सारी दुनिया ने छोड़ा हुआ है। नजर साहब आपको पूछना ये था कादियान क्यों छोड़ा? नजर भाई पूछे ये कादियान क्यों छोड़ा? पाकिस्तान में तो मसला आगे कादियान है, अभी भी है, कहीं कहीं नहीं छोड़ा। वापस क्यों नहीं चले जाते? कादियान दारुल अमान भाई, हमको हमारे नबी की जगह से जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई, जहाँ पर वो रहे, हमको तो उससे बहुत मोहब्बत है। हाँ तो चले जाए वहाँ। नहीं, जो हमारे अंडर में ही है, वो मुसलमानों के पास ही, हमसे किसी ने छीना नहीं। मुसलमानों के आप तो कादियान छोड़कर आपके खलीफा निकले ना वहाँ से। पाकिस्तानियों को तो वीजा लेके जाए, अगर वो कहेंगे अभी भी ये ना बढ़ रहा, बगैर वीजा के जाना पड़ता है यार, कादियान में बगैर वीजा के जाना पड़ता है। जाओ वहाँ पे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान मुल्क में जो है वीजा लेकर जाइए, हमारा आपसी का मसला है ना। लेकिन हम जा सकते हैं, हमको किसी ने निकाला हुआ नहीं वहां से, हमने ये नहीं कहा कि हम मदीना छोड़ के निकल गए। आप तो कादियान छोड़ के निकले, आपके खलीफा। हमारा भी आपसी तो निकाला नहीं था वहां से, हमारा भी आपसी का मसला। भाई उसमें उनके साथ इंडिया के चलो ठीक हो गया। करना चाहता, उन्होंने कानून में डालने से मजहब को मना किया था। मेजॉरिटी जो थी उस हिसाब से तो कंट्री वही कहलाएगी। आपसी का मसला। नाउन साहब, आपको फिर एक बात कर दूं, कायदे आजम की आपने वो वाली स्पीच नहीं सुनी होगी कि ऐसा मुल्क बनाना जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अपने इबादत के लिए, अपने कायद के लिए आजाद होगा, वो आपने सुना है? उन्होंने कहा था इस्लामी लिबर्टी होगी जहाँ पे तजर्बे होंगे इस्लाम पे, मुसलमानों के लिए, मुसलमान आजाद होंगे इबादत के लिए। इस्लामी और अगर ये बात होती कि मुसलमान जो है यहाँ पर अपने कवानीन नहीं बना सकते, तो उससे पहले 1930 से पहले जो मुस्लिम लीग का जो पूरी कार्रवाई थी वो ये थी कि जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत हैं वो एक गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए जो है वो अपने निज़ाम को चलाएं। जैसे लेकिन जब वो चीज़ फेल होती हुई नजर आई, जब वो चीज़ मेरे ख्याल से आमर भाई आ गए बस इसके बाद इन्होंने तहरीक शुरू की। नहीं, मैं एक गल पूछनी सी, मैं उस वेले बिजी हो गया। बांग्लादेश पता नहीं क्यों नहीं इस्लामी मुल्क में रह सका। मैं एक गल पूछनी सी मुसलमानों ਨੂੰ। मिर्जा साहब ਦੀ किताब ਦਾ रेफरेंस है, रेफरेंस किताब ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਸ਼ਾਰ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ गुस्ताखाना ने ਜਿਹੜੇ यूसुफी भाई पेश कर रहे सी, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादिया में। ਇਹ ਅਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ नहीं पता, मैं कोई शायर मैं अनपढ़ बंदा, किन्ने लिखे ने ते किन्ने लिखाए ने, मैं तो ग्रामर नहीं आती है, मतलब की है। नहीं ये नहीं मैं पूछा, ये नहीं मैं पूछा किन्ने लिखे ने ते किन्ने लिखाए। मैंने नहीं पढ़ा, सुनन में भी मैंने कोई समझ नहीं आती है, बड़ी फसीह और बलीग कलाम है। हाँ, कलाम ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, ए केड़ा मुश्किल कर ले उतरने की जरूरत नहीं, वो तो हमेशा में हमें हाजिर नाज़िर है। काजी ज़हूर अकमल ने जो लिखी है, ये पहले शेर गलत हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि मोहम्मद जो हैं वो तो हैं हम में मौजूद, हाजिर और नाज़िर है, उनको दोबारा उतरने की जरूरत ही नहीं है। गुस्ताखाना मैनू नहीं पता, लेकिन यह गलत लगता ग्रामेटिकली जिन्नी मैनू उर्दू आती है। मैं नहीं पूछा ग्रामेटिक विच इहदे च की गलती, ग्रामर दी की गलती, मैं ये पूछ रहा ए मफहूम सुनो जरा। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादिया में। इधर केड़ी नाम समझ आने वाली गल है? वो आसमान से इस दफा उतरे हैं,
पहले तो पैदा हुए थे, इस दफा आसमान से उतरे हैं और अपनी शान से बहुत आगे निकल चुके हैं। हैं जी? तो बस जिसने नहीं दीदार किया वो अब कर ले, जो कहते हैं कि अगर काश रसूल अल्लाह हमें नजर आते तो ख्वाबों में देखते हो तो देख लो। हाँ, तो अब ये जो लिखा है, जो अब आपको समझ आ गई है बात, ये गुस्ताखाना है कि ये तो कोई होना आलम ही दसेगा। जैसे आलम जो मसूद साहब हैं उनकी आप कहते हैं गुस्ताखी नहीं है, ये गलती है, ये शातमियत नहीं है। आपने अभी फरमाया ना कि ये शातमियत नहीं है, ये एक लफ्जों का चुनाव गलत है। जहालत है, मैंने तो कहा ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਨਕਰ ਆ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੋ ਫਿਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਬਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੁਨਕਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। मुनकर का मतलब होता है इनकार करने वाला। अच्छा चलो, जो मैं तो ही आता हूं, तुसी ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੈਨਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, मुनकर का मतलब होता है इनकार करने वाला। इनकार ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਝੂਠੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਮੁਨਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਜਾਂ ਕੁਫਰੀਆ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਐਸ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਮਨਾ ਸਦਕ ਲਬੈਕ या रसूल अल्लाह लबैक, ऐसा स्टेटमेंट है ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ, आप 10 मिनट पहुंचे हुए हैं, 10 मिनट आ जाना। तैयार हो गई कुर्बानियां दी। मैं ये कहना पिया जमील साहब कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤਹੁ ਆਲੀਆ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਤਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ 15 ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਲਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਨਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪਿਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟ ਅਮੰਗ ਬਿਲੀਅਨਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ लेकिन कत्ल कर दो एक कादियानी अगर सड़क पे एक्सीडेंट हो खून बह रहा हो उसके मुंह में पानी नहीं डालना उसके घर को आग लग जाए तो पक्का चला देना है 511 को कॉल नहीं करना अल्लाह ताला ने कुत्ते की खिदमत कर देखो अल्लाह ताला ने मखलूकात करते पे ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਇਨਮਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੂਨ ਨਜ਼ਰ ਸੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਨਿਜਸ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਿਜਸ ਦਿਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ कुत्ते की तरह निजस है ਲਿਹਾਜ਼ਾ ऐसा कुत्ता किस तरह वैसे जो अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने उन्होंने बनाया ना कुत्ता कितों निजस हो गया हजरत अहमद शाह बरेलवी साहब ने फरमाया कि ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਆ ਗੌਸ ਬਾਦ ਦੇ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਉੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ 4 ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੁਕਾਦੀਆਂ ਚ ਵੇਖ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨੇ ਇਹ ਅਸ਼ਾਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਉਹ ਹੀ ਬਤਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਸੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਸੀ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਬ੍ਰੇਨ ਫਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਮ ਤੇ ਬਰਕਾਤੂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਜਜ਼ਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ मैं गुलाम मुस्तफा हूँ मैं ਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਔਰ ਮੈਥ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਲਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਦੀਨ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜੀ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਲਾਇਲ ਔਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਛੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ਬੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਬਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੇ ਬੀਬਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਮਨ ਮੇਰੀ अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई 2 मिनट देना मैंने सॉरी लो जी बड़े स्कॉलर आए जी यार सवाल करना है बम्बास्टिक इंतहाई गुस्ताख इंसान ने कल रात एक लाइव पे बैठ के हजरत इमाम हुसैन दी गुस्ताख ला जी देखा इस बंदे नु लाइव पे ना ले सजा सरतन से जुदा सरतन से जुदा गुस्ताख तो लावा मेरी गल नहीं हो के करो इसने कल बैठे हैं इमाम हुसैन दी लाइव गुस्ताखी की थी एक मुसलमान जो ठीक है मैं कहना गुस्ताख सारी मर्जाई शर्म ना दूसरे नंबर ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੰਡਨ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਟ ਜਾਓ ਫਿਰ मैं बम पाट के तेरे घर पाटांगा वो सब तो बेहतर रहेगा ताकि आजा जलालत ही होए तेरी
आ जा फिर आ जा, शाबाश आ जा, भों पटाके आ, तेन फूक मार के मैं चलाना, आ जा भैन दा फुद्दा भैन चोद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, आशिके रसूल आ गया ही है। देखो ना, हम मुसलमान, हमारा आपस का मामला है जी, हम गालियां निकालते हैं। गाली ना दें जी, गाली ना दें, नहीं जी, आपस का मामला है, आपस का मामला के निकाल सकते हैं, क्यों नहीं है यार? गाली की इजाजत ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਾਬ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਛੜੋ ਬਾਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਾਬ ਅੱਗੇ ਚੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸ਼ਾਰ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ABC ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਸ਼ਾਰ ਨੇ, ABC ਦੇ ਅਸ਼ਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਸਰ ਔਰ ਅਸ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ ਅਸ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਣਾ ਥਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਹੂੰ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ 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 ਐ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाम में, मोहम्मद देखने जिसने अकमल गुलाम है ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ पहले तो ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ। ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਸ਼ੇਰ, ਡਿੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ? ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਦਿਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਮਾਰੇ ਆਕਾ ਉਹ ਮੌਲਾ, ਉਹ ਦਿਲਜੋਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਿਲਜੋਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। लेकिन मिर्जा साहब ने तो यही किया, बरूज ने ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਕਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, मिर्जा साहब ने तो यही किया कि वो बरूज ने तेरे च की शेर च की गलती है। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ? ਇਹ ਨੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਸਾਦਕ ਨੇ। ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੁੱਛਾਂ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬਰੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸ਼ਾਰ ਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸ਼ਾਰ ਸਖਤ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਅਸ਼ਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਕਮਲ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅਖਰਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਖਰੂਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਸੀ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਾਸਿਕ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਤੇ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਲੀਫੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਦੀ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਲੀਫੇ ਬਣੇ ਨੇ 1956 ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਖਲੀਫਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਪੋਪ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਧੂਏ ਦੇ ਬਗੈਰ ਖਲੀਫੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਨਾਲ ਤੇ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਖਿਲਾਫਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ। ਹਾਂਜੀ ਜਵੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੈਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਟਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ऐसी कोई गल नहीं, लीक हो गया। नहीं मकसद है
ਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੇ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਫਰੇਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਕਮਲ। ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੌਰੀ ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਖਤ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਅਸ਼ਾਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨ ਦਾ ਜੁਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਣਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਰ ਖਲੋਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੀਫੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਕਾਫਰ। थल्ले एक बाजी कह रही है मिस्टर बम्बास्टिक दफा हो जाओ जमात को बदनाम कराने वाले। ओहो हाँ उम्मे अहमद ताहिर अमजद अंकल प्लीज इस बम्बास्टिक को समझाएं प्लीज। आपने ताहिर अमजद को अंकल क्यों कहा है, वो तो भी भाई है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। जमात का कक नहीं छोड़ा बम्बास्टिक ने। ओए ये पक्की हमारा बंदा है, ये मुसलमान है। अच्छा अहमदी औरत है भाई, ये उनकी ब्राड पे बैठी होती है, वो जो है क्या नाम। ठीक है, उनका अपना ओपिनियन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा मतलब कैसा साहब, कल ना सीकर की ब्राड पे भट्टो साहब के हवाले से एक प्रोग्राम चल रहा था, तो मिर्जा ताहिर साहब जो है ना उन्होंने जो है भट्टो साहब के बारे में बड़ी तारीफें भी की, खुद को उनका वर्कर भी कहा और यानी कि काफी तारीफ की, और फिर उन्होंने ही इल्हाम अपना एक पेश किया और भट्टो साहब नज़ीर साहब शेर दा फैसला हो गया है, जवाब मैं तेरे कराना हूं, जरा सबर से करना जेडी कल तू ओ यार चुप कर यार, तू आके विच आ गया, तू की पता कितना खलीफा भी 2 नंबर सी। जी 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 हाँ जी, हज़रत उमर भी 2 नंबर खलीफा थे फिर नहीं, हजरत उमर का इनके क्या ताल्लुक? बिल्कुल ताल्लुक है, खलीफों का हजरत उमर से क्या ताल्लुक भाई? वो खाम तो जंबा साहब 2 नंबर हैं, वो भी के 3 नंबर हैं। नहीं, जंबा साहब तो मिर्जा महमूद के खलीफे नहीं है। अच्छा किधर ने वो रसूल अल्लाह के? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह, मिर्जा साहब से मुसलमानों मिर्जा साहब से वैसे ही जंबा साहब रसूल अल्लाह दे खलीफा जे ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। हेलो ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਪਟਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸੀ? 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ रसूल अल्लाह का खलीफा हज़रत जंबा साहब रहमतुल्लाह अलैह, गफ्फार अहमद जंबा साहब रसूल अल्लाह के खलीफा डिक्लेयर हो चुके हैं। ਜਿਹੜੇ 5 ਨੰਬਰ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਨੇ देखो ना आमन नज़ीर भी तेरी गैरत नहीं जाती। मिर्जा मसरूर खलीफा ऑफ इस्लाम बनाया है ओके जितने मर्जी इस्लाम तो जुतियां मार को जेड़ा कढ़िया है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਜੰਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ गैरत सिर्फ वो अफजल करीम की जागी थी ना, जागी थी ना स्टेशन पे। जहन्नमी फिरकों का इत्तेहाद, इत्तेहादुल बैनुल काफिरीन। वाह खुदा कैसे 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 एक फिरके को कैसे फिल्टर करता है। और देखे 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 साहब एक बात सुन ले प्लीज। आप हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम मोदी इस्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ देखे जमात अहमदिया के भी फिरके हो गए हैं, कोई जंबा वो मुस्लिम मौद भी नंगी औरतों से देखने के बाद उसने इस्लाह शुरू की थी, असल इस्लाह। हाँ जी, आपकी अम्मी गई होंगी उनके पास, वो भी तो नहीं, आपकी अम्मी होंगी, मेरी अम्मी तो उस वक्त मौजूद नहीं थी, आपकी अम्मी होंगी शायद, जिनको आपका मुस्लिम वो देखने गया था, अपनी अम्मियां बिठा के उसे देखने गया। मेरे भाई मेरी अम्मी गैर अहमदिया, आपकी अम्मी को देखा होगा, वो तो जाती होगी। नहीं तो वो जो मुस्लिम मौत था वो लोगों की अम्मियों को नंगा देखने गया था। नीचे कमेंट कर रही है बाजी कह रही है मिस्टर बम्बास्टिक चुप करो, गलीज इंसान जमात। अगर ये आपकी अम्मी ने कहा कि ये सच है, उनको देखा है,
तो ये फिर सच्ची बात है, नहीं तो आप बकवास कर रहे हैं। नहीं, बकवास मैं नहीं कर रहा। आपके 2 नंबर खलीफा ने ईदगाह में खुतबा दिया कादियान में कि मुझे उरियां देखने का बहुत शौक था, मौका नहीं था बन रहा। आखिर ये जो चौधरी लंदन में मैं क्या अदालती इंसाफ के जज जो थे वो उन्होंने सहूलतकारी की तो उनकी फिर ये ख्वाहिश पूरी हुई, लेकिन उनकी आंखों में कुकरे पड़े थे, वो दीदे फाड़ फाड़ के देखते रहे। फिर आखिर उन्होंने पूछा कि क्या ये नंगी हैं, तो चौधरी ज़फरुल्लाह खान ने बताया कि नहीं, बिल्कुल नंगी नहीं है, थोड़े थोड़े कपड़े पहने हुए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पैसे ये आपके खलीफा जी ने खुद बताया है, आप किसी के ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? आपके खलीफा जी ने ये ईदगाह में खुतबा दिया। बंद कर दे, मैं मुसलमाना दी खत्म हो गई, मेरा माइक भाई आप यही चाहते थे ना। चलो हो गया, मैं आपके खलीफा की बात कर रहे हैं, माओ बहनों पे जा रहे हैं। मेरी बात सुनो तारक चौहान साहब, आराम से बात सुनो, ध्यान से सुनाए। आपका सारा खानदान अहमदी है ना, पीछे कितनी नस्लों से अहमदी हैं आप ये बताएं? एक नस्ल से। एक नस्ल से। आपके वालिदैन ने अहमदियत कबूल की थी कि दादाजी ने? वालिदैन ने। देखें, अगर इतनी गलती थी इन खुलफा में, ये नंगी औरतें देखते, ये देखते थे, तो उसकी जो टेस्टिमनी होती है, गवाही होनी चाहिए, आपके घर की औरतों से होनी चाहिए। कि भाई मैं खलीफा से मिलने गया, खलीफा जी घर की औरतों को लेके गए थे और साथ नंगी औरतों को देखते वक्त? नहीं, मैं ये कह रहा हूं औरतों को लेके गए थे खलीफा जी अपनी? आप कहते हैं ना कि उनकी बीवी साथ थी या बेटियां साथ थी जब वो गए थे? घर की औरतें कौन सी साथ लेके गए थे वो? कहाँ पे आप ये, अच्छा ये बात आपने कहा कि कौन सी घर की औरतें साथ लेके गए थे खलीफा जी? कहाँ पे? ज़फरुल्लाह खान के साथ। कहाँ पे गए थे? घर की औरतों की आप गवाही मांग रहे हैं? वो कहाँ पे? पेरिस में जहाँ पे नंगी औरतें देखी थी। नंगी औरतें तो नहीं देखी थी। उरियानी का वाला हिस्सा यूरोप का, उरियानी वाला हिस्सा बताया कि किसी मुखालिफ ने तो इल्जाम नहीं ना लगाया, उन्होंने खुद बताया ईदगाह में खुतबा दिया कादियान में। उन्होंने फखर से बताया मुझे उरियां देखने का बड़ा शौक था। मेरी बात सुने, बात सुन लो ना आराम से। अगर कोई बंदा ऐब करता है, गुनाह करता है, ठीक है, तो पूरी दुनिया को इस तरह बताता है, उसकी तशहीर करता है। हाँ जी, बताता है। जब आदमी ढीठ और बेशरम हो, जिसको पता हो कि मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा। अब देखें, सबके सामने वो मिस रूफू को ले गए, कैबरे डांसर। लंबी बात है ना, एक भैरा होना मिस रूफू, एक भैरा नहीं, 2-3 पे रहते हैं। इधर गए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ यार। एक सबके सामने जो ले गया सारी बातें ये सुनी, कैबरे डांसर को, उसको किसी का डर मारी था। उसको पता था ये भेड़े हैं मेरे सामने, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं 72 जनवरी भेड़ों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुझे ये बताएं, मिस रूफू को वो लेके गए थे सबके सामने, वो उनका अखबार में भी खबर आ गई, उन्होंने अपने खुतबे में भी बताया कि वो कैबरे डांसर थी सेसल होटल की, मिस रूफू, उसको वो कादियान लेके गए। तो सबके सामने लेके गए ना, उनको किसी का डर मारी था? आपके वालिदैन को ये खबर का पता चला था? आपके फुफड़ को पता चला था? पता नहीं, आपकी चाची ने ये देखा था उनको जाते हुए? आपकी बड़ी अम्मी जान ने देखा था उनको? इस बेचारे की बात है ना भाई, अपने खलीफा तक रहो, उसकी बात हम कर रहे हैं। अपनी अम्मियों तक और अपनी बाजियों तक क्यों जा रहे हो? मैं तो ये बात हम कर रहे हैं खलीफा जी की, उन्होंने खुद ये बात कही। मैं ये अर्ज करने इस रूफों के मतलब भी उन्होंने खुद खुतबे में बताया। सुन लो ना मेरे भाई, मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तो आप कहें कि आपके खानदान के बाकी सारे जो लोग थे वो मखबूतुल हवास थे, और उनको तो मिर्जा साहब 52 साल मखबूतुल हवास थे, जो हजरत ईसा को आसमान पर बैठा के बैठे हुए थे। मखबूतुल हवास लाते हैं, अगर आप कहते हैं मखबूतुल हवास से, तो मान लो, फिर आपकी मर्जी है। आप मान लो ना, फिर आप छोड़ दो। मानते हैं मखबूतुल हवास को क्यों हक मोदल बैठा के बैठे हुए? बात ये है कि अगर आपके जो सारे रिश्तेदार और बड़े जो थे, आपके बुजुर्ग, वो यहाँ तो मखबूतुल हवास थे, तो आपके जितने बड़े थे वो मखबूतुल हवास थे, जो हजरत ईसा को आसमान पे बैठा के बैठे थे, मुशरिकाना मज़हब का खेज अकीदा बना के बैठे हुए थे। मखबूतुल हवास थे आपके सारे पिछले। इस तरह करोगे तो हार्ट अटैक हो जाना तुझे। बात सुनो, मुझे तो नहीं होगा, तुम्हें जरूर होगा। सुनो बात, सुनो। अच्छा प्यार से मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे बड़े मखबूतुल हवास थे
جو مشرکانہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر بیٹھے ہوں، مذہب کا خیز عقیدہ جس کو مرزا صاحب نے کہا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، وہ مخبوط الحواس تھے سارے کے سارے. اچھا بتاؤ اب. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان میں میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. اچھا میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. مخبوط الحواس جی انہوں نے میری آپ بات کے کا جواب دو. بزرگوں نے یہ ساری تقریریں مخبوط سنی، الحواس میرے سوال کا جواب انہوں دو. نے میڈم روفو کی باتیں بھی سنی اور پھر بھی نہیں وہ انہوں نے خطبے میں بتایا اور موسی ہیں اور ان قبروں میں دفن بات ہوئے. تو سنو بھائی، انہوں نے خطبے میں بتایا. لعنت بھیج وہ تو مٹی بھیجو لعنت اس پہ، زانی خلیفہ پہ لعنت بھیجو. تم ان کے غیر حلالی خلیفوں کو تم اپنا مائی باپ بنا کے بیٹھے ہوئے. بھائی اس طرح کے خلیفے پہ تمہارے بزرگوں پہ زیادہ بڑی لعنت ہے کہ وہ ایمان اور بھائی لعنت بھیجو ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ خلیفے بنائے، جنہوں نے یہ زنا کے کام کیے، بدکاریاں کی، وہ برابر بیویوں کے ساتھ کام کروائے، ان پہ لعنت بھیجو. برابر کے شریک ہے جنہوں نے مانا اور چندے دیے. ہاں تو جن کو نہیں پتا تھا وہی اس وقت بھی سارے وہ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ تم زانی لوگ ہو اس لیے تمہیں چندے دے رہے ہیں کہ تم زنا کرتے ہو اس وجہ سے چندے دے رہے ہیں. لوگوں کو نہیں پتا، لوگ نادان ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں. تم لوگوں نے جو یہ جعلی عکس ڈالا ہوا نا لوگوں کے اوپر، تم خدا کے بنائے ہو خلیفے ہو. اب تمہیں کیا پتا؟ اب مرزائی کنجر خانہ لوگوں کو سارے سامنے آ گیا، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ کسی مخالف نے کہا ہوگا. تو لوگ تو بےچارے سادہ دل ہوتے ہیں نا، اسی وجہ سے پیچھے لگے ہوئے. ایک طارق جو مرزائی کنجر خانہ سے کپڑا اتر بھی گیا پھر بھی لوگ پیچھے لگے ہوں تم لوگوں کو. اور اس کنجر خانے میں آپ کے سارے بزرگ شامل تھے. تو مرزائی کنجر خانہ کھل گیا، سامنے آ گیا، کسی مخالف نے شکایت نہیں لگائی. مرزا ناصر کی پوتی، مرزا طاہر کی نواسی، مرزا طاہر کی بیٹی، وہ بتا رہے ہیں. طارق چوہان ہے مسلمانوں، سن لو طارق چوہان کنجران دی اولاد جے. کنجر دی اولاد تو ہے گا جو کنجروں کا پتہ بھی چل گیا، اسی کنجر کے پیچھے تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور چندے بھی دے رہے ہو. ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے چھوڑ دیا کنجروں کو. تمہارے والدین کنجر بھی پڑھتے تھے. تم ان کنجروں کے پیچھے ابھی تک لگے ہو، حالانکہ کنجر خانہ پتہ چل گیا. تیرے بزرگ سارے کنجر خانہ. او بھائی اس وقت تم کو پتہ چل گیا نا تمہیں کنجر خانہ ہے وہ، تم ان کنجروں کے پیچھے لگے ہوئے ہو نا. تو صاحب چھڑ دو، میں منع کر کے گیا کہ جڑا بندہ گال کڈے کنجر کنجر رکھے اس کے پاس اور بکواس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ یہی بکواس شروع کر دیتا جب بھی آتے. تو تم بھی یہ بکواس. احمد صاحب میرا خیال نیچے طاہر صاحب آئے، ان کو بھی میرا خیال لے لے. باقی گند وہ پھیلا دیں گے آ کے. اس نے غلاظت پھیلانی ہے آ کے، جیسے یہ پھیلا رہا ہے غلاظت. آپ یار صاحب آپ یہی تو چاہتے تھے، اسی لیے تو آپ نے کہا تھا کہ تو پاٹ جانا ہے. طارق اپنا جمیل صاحب ایک تو سب نے آخیا کہ طارق چوہان صاحب نو پوچھ لے. اچھا جواب مل گیا ان کے نہیں، وہ شعر ختم ہو گیا کہ وہ مسئلہ اتھے ہی گل چھڑی ہے نا، اتھے ہی گل نہیں جواب مل گیا کہ نہیں گل چھڑی ہے نا. ہن جیڑا جواب ملیا او تے بیان کرن. ٹھیک ہے، بہرحال تہاڈی قبض دور ہو گئی ہے. پھر وہی گل ساڈے متے لاندے پے. انہاں دی قبر دور نہیں ہوئی ہے، کنجر خانہ ویکھ کے بھی اودے پیچھے ہی لگے نے. یا تو کو چنگی جی لیگزیٹو کھایا کر طارق چوہان تے تیرا اکبر خان. ایس عمر میں ویسے بھی جو ہوتا ہے نا وہ ہارمون لیول جو ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. ہاں تو اسے قبض ہو جاتی ہے. تو اکثیر اعظم کھایا کر. تو مفرہ یا کتی کھایا بکریوں کو آتا ہے. خاموش ہو جاؤ چوہان صاحب، تسی چھڑ دو. منصور صاحب تسی گل کرو. ہاں پپو ملک گل کرو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد صاحب یہ کیا مطلب کوئی پازیٹیو گفتگو کی بجائے اس طرح کی الزام تراشیاں جو ہیں، کیا اس سے مطلب نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جب نیگیٹو باتیں کی جائیں گی تو اس کے نیگیٹو ہی رزلٹ نکلتے. کبھی بھی آپ نیگیٹو چیز سے پازیٹیو چیز کی رزلٹ ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. نہیں کرنی چاہیے تھا، علمی گفتگو کرنی. تو ہر ٹائم تنقید، دوسروں پہ تنقید، وہ کی کہندے ہوندے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے بجائے یہ کہ دوسرے
ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। हमने क्यों किया वो मुर्दार खोर मौलवियों, वो तनकीद क्यों की उन्होंने? ये देखो ये चमचा बोले चमचा। वो मिर्जा साहब ने मंजी तले डांग फेरी थी तो मैं कौन खाम खा ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਓਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੀ ਹੈ। एक खोते दी औलाद है बम्बास्टिक। ते वो मीर साहब म्यूट कर लो, मीर साहब नहीं उन्होंने आपसे बात कर रहे हैं अमन नजीर साहब, ये बात गलत है। ये तारक जोहान विचार जी का डांग का जवाब आपको बहुत खूबसूरत दिया है वैसे तारिक चौहान साहब ने, मजा आ गया। ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा तारिक चौहान साहब एक दफा रिपीट करिएगा, बड़ा अच्छा जुमला बोला था आपने खोर मौलवियों वाला। हाँ जी। वैसे अमन नजीर साहब आप पे इल्जाम है कि आप कादियानियों के सहूलतकार हैं, लेकिन आज साबित हो गया कि आप जंबियों के सहूलतकार जरूर हैं। ये साबित हो गया, आप पे ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि जी ओ जो अमन नजीर है ये काफिर है, जंदीक है, कादियानी है, कादियानियों का सहूलतकार है। लेकिन आज तो प्रैक्टिकली ये साबित हो गया कि आप जंबियों के सहूलतकार लाजमी हैं। माशाल्लाह। तो बम्बास्टिक जो है वो मिर्जाई कंजर खाने का सहूलतकार है, माशाल्लाह लाजमी है। कंजर खान में तेरी माँ बहन भाई सब शामिल हैं, प्यो भी। बहन भाई गालियां दे रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है जो बहन भाई नीचे गालियां दे रहे हैं कि मिर्जा साहब की तालीम भी ना पेश करें और बाबों की भी तालीम ना पेश करें। जज़ाकल्लाह खैर। तालीम पेश करें जी, चुप कर जा एक मिनट। सही है। चले जी ताजदारे खत्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियां नहीं थे देते, मिर्जा साहब तो गालियां दे के गए हैं ना। खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। चले जी सारे एक दफा नारा लाओ, या अली मिसरूफू का आशिक मुर्दाबाद। अच्छा पप्पू साहब अल्लाह के खलीफा अब्दुल गफ्फार जंबा साहब जिंदाबाद। हजरत मंसूर साहब भी एक बात कर रहे हैं। सलाम साहब जरा चुप कर जो हुन जरा गल मंसूर साहब भी एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तनकीदी बहस का क्या फायदा है, कोई इस्लाही बहस होनी चाहिए, इससे क्या निकलेगा। अच्छा मंसूर साहब भी कल रात को ना सीकर की ब्रॉड पे मौजूद थे और बम्बास्टर साहब भी वहां पे मौजूद थे और मंसूर साहब से भी सवाल किया था उन्होंने, सीकर साहब ने भी, और पूछा था इनको कि ये जो बम्बास्टर साहब ने जो किया है इसके बारे में आपका क्या मतलब नजरिया है या सोच है। तो वहां पे मंसूर साहब जो है बिल्कुल चुप हो गए थे। आप मुझसे पूछ रहे हैं साहब, मैं बकलम खुद मौजूद हूँ, मैं बकलम खुद मौजूद हूँ और मुझसे पूछो ना अबू बकरा, अकड़ बकड़ मेरे को पूछी यार, मैं इधर मौजूद हूँ बकलम खुद ना। मंसूर साहब को क्यों फंसाते हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं इधर हूँ। मैनू समझ नहीं लगती कि भाई अच्छा तुम जवाब दे देना, कोई मसला नहीं। अकड़ बकड़ मैं इधर मौजूद हूँ। कल जो है ना, कल सीकर साहब ने वहां पे ब्राड लगाई हुई थी और सीकर साहब जो है वो ताहिर साहब की वो ऑडियो चला रहे थे जिसमें एक तकरीर उन्होंने की हुई जिसमें भुट्टो साहब की बड़ी तारीफें की उन्होंने और कह रहे थे कि भुट्टो साहब का मैं वर्कर भी रहा हूँ और भुट्टो साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं थी कि मैं वर्कर रहा हूँ। क्यों झूठ बोल रहा है? मिर्जा ताहिर जरसरी पंजाब का गवर्नर बनना चाहता था ना। जी पूरी रिकॉर्डिंग की हुई है, नसीब नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद ये सारी तारीफें करने के बाद ये सारी तारीफें करने के बाद वही ताहिर साहब जो है अपना एक इल्हाम पेश करते हैं और फिर उसको मिर्जा साहब के इल्हाम के साथ जोड़ के भुट्टो साहब को कुत्ता कहते हैं। तो सीकर साहब ने सवाल वहां पे पूछा, सीकर साहब ने सवाल पूछा बम्बास्टर साहब से कि जो कुत्ते का वर्कर होता है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो बम्बास्टर साहब का आगे जवाब ये था कि जो सुअर हो
जो सुअर हो जो और जिस नबी को वो जो मानता भी हो बंदा बात उस नबी को पेश क्या कर रहा है, कहते हैं? सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बात पूरी पेश करे ये जैसे कभी कि नहीं पूरी थी, पूरी पेश नहीं करेगा, ये पूरी अपनी बात मर्जी से पेश करेगा। करे कि हाँ। ये जो बात होती है कि ये गलत बात होती है कि बात जिस तरह हुई हो, यहाँ अगर तो आप बात पूरी नहीं कर सकते तो तो ना फिर वो करें। बात ही नहीं करनी चाहिए। वो इल्ज़ाम होता है, बहतान होता है, और जिसको अल्लाह ताला रिकॉर्डिंग ने चला मना दें, किया है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ रिकॉर्डिंग ये जो रिकॉर्डिंग चला दें। नहीं, मैं पेश नहीं कलबई ये कर रहा, मूतू वाला मैंने कलबई बात पेश नहीं रिकॉर्डिंग की। चलाओ, ये रिकॉर्डिंग दो चलाओ। ये कलबई ये मूतू वाला कलबई ये इल्हाम था। ये 2 नंबर खलीफा पे आता जो जिसकी 52 साल खिलाफत थी, इसलिए वो कुत्ते की आदत पर मरा था। टिकट बांट रही थी 1970 की इलेक्शन के लिए, तो कादियानियों के जो लीडर थे मिर्जा ताहिर, वो कमेटी में बैठे हुए थे, उनको वो भी देख रहे थे किसको टिकट जा रहा है और टिकट नहीं जा रहा। और कादियानी बड़े क्लोज थे पीपल्स पार्टी की, और फिर 74 में उनको बैन कर दिया। और रफी रजा साहब आपके साथी कहते हैं कि इसलिए किया क्योंकि ये फिक्र था कि कादियानी का वोट बैंक जो है वो सारा असर खान की तरफ न चला जाए। नहीं, ये फजूल की बात है। ये सही है कि कादियानी हमारे बहुत बड़े सपोर्टर थे। 70 के इलेक्शन में उनसे मशवरा किया जाता था। ताहिर अहमद जो थे, मिर्जा ताहिर अहमद, वो मेरे बड़े खुद जाती दोस्त थे और बहुत अच्छे आदमी थे। इसी तरह उनके जो बड़े भाई जो उस वक्त हजरत साहब थे, वो भी बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन ये सियासी बातें हैं, इनको फ्यूडल तर्ज से नहीं देखना चाहिए। सियासत में आज दोस्त हो, कल सर कलम। फ्यूडल में आज जिसे यार कह दिया वो यार ही है, चाहे चोर हो, चाहे मुखालिफ हो, चाहे कुछ ही हो। नहीं, सही कह रहे हैं, मगर जब हिस्ट्री लिखी जाती है और अब जब पढ़ी जाती है तो उसमें यही कहा जाता है कि ये पहला कदम था सो कॉल्ड इस्लामाइजेशन का, जो कि बिल्कुल फ्रॉड तरीके से फिर उसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने की। ये पहला, जैसे कहते हैं, पत्थर फेंका गया था और वो हमारे गले पड़ा हुआ है आज तक। ये हिस्टोरियंस जिस वजह से वो फेंका गया था वो मैं यहाँ नहीं आपको बता सकता, क्योंकि उससे इंटरनेशनल रिलेशंस इन्वॉल्व हैं। लेकिन अच्छा, ये जो वीडियो लगा रहे हैं, ये कल रात वाली बड़े है? बड़े जो नहीं, ये जो वीडियो आप लगा रहे हैं, कल रात वाली है? मिर्जा प्रोपेगेंडा वाली वीडियो है ये। तो कल रात वाली लगाए ना, क्योंकि आप कह रहे हैं जी, बिल्कुल यही ये सवाल सवाल किया किया गया गया था। ठीक है जी, कुत्ते का वर्कर कौन होगा? अब और बम्बास्टिक कुत्ते के साहब बारे ने में आगे जवाब क्या दिया था?
کہ میرا ہمیشہ یہ انسٹانٹ ہوتا ہے کہ جب بھی بات کی جائے، گفتگو کی جائے، اس میں غامدی صاحب کے بھی بڑے اچھے الفاظ ہیں کہ ہیٹ سپیچ کے متعلق انہوں نے بڑا مختصر سا بیان کیا کہ کیا چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جب غامدی صاحب آپ کے حق موزن ہیں. دسو جی تسی کر لو کل میں بھی مرزا صاحب کی بات کیا کریں جو آپ کے حق موزن ہے. غامدی صاحب کے بیچارے غامدی صاحب تو مرزا صاحب کو کذاب دجال کہتے ہیں، آپ ان کی بتا رہے ہیں. مرزا صاحب کی بات کیا کریں جو حق موزن ہے. میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا تو آپ میرے ساتھ کیوں خام خواہ؟ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ جس کو آپ حق موزن مانتے ہیں اس کے اقوال پیش کیا کریں. اگر آپ کو بات کرنے کا اتنا ہی شوق ہے بمباسٹر صاحب کو بلائیں، پھر آپ کو اچھے میرا خیال ہے کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. آپ کو نصیحت اچھی نہیں لگ رہی؟ میں آپ کو مرزا صاحب کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. میں اس لیول پہ نہیں جا سکتا جس لیول پہ مرزا صاحب کس لیول پہ چلے گئے تھے جو آپ کہتے ہیں میں نہیں اس لیول پہ جا سکتا؟ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں بات، میں اس لیول پہ نہیں جا سکتا. میں آپ کو مرزا صاحب کی توجہ دلا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں اس لیول پہ نہیں جا سکتا. مرزا صاحب تھوڑے دن رہ گئے لاہور لے جاؤ انہوں نے. اچھا تو تانوں کتنے لے کے جائیے مرزائی کنجرانی؟ اصل میں طارق چوہان صاحب مسئلہ یہ آپ سب لوگوں کا یہ ہے کہ ہمارے یہودیوں کے ساتھ کتنے اختلافات ہیں، عیسائیوں کے ساتھ کتنے اختلافات ہیں. ہمیں وہ ہمارے نبی کو بھی توبہ نعوذ باللہ غلط کہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں توبہ نعوذ باللہ کبھی یہ سوچا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کبھی یہ سوچا؟ آپ لوگوں کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ الزام میں آپ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتے. اصل میں آپ لوگوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ لوگوں کے سائڈ کے اوپر وہ لے کے چلے گئے آپ کے جو کابرین تھے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا واللہ عالم. ٹھیک ہے، اب آپ چھوٹی سی بھی بات ہو حضرت عمر پر توبہ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ پر، ایک سیکنڈ میں چلے جاتے ہیں. آپ کی یہ تعلیم ہے. منصور صاحب آپ کو اس نصیحت سے آپ نے سن لی ہے؟ یہ بات بہت حد تک درست ہے. لاہوریوں کا اور قادیانیوں کا ان دنوں میں 36 کا آنکڑا چل رہا تھا تو خواجہ کمال الدین کی ڈیتھ ہو گئی. خواجہ کمال الدین لاہوری گروہ کا تھا. اب قادیانی گروہ کا بندہ لاہوری گروہ سے مخاطب ہے، بات کر رہا ہے، کہتا ہے خواجہ کمال الدین کا پتہ لگا کہ مر گیا. کہتا ہے ہاں مر گیا. وہ کہتا ہے کہ خاص کم جہاں پاک یا اس طرح کے کوئی لفظ اس نے بولے. اس نے کہا ایسے نہ کرو، وہ تو اللہ کا ولی تھا. لاہوری کہنے لگا کہ وہ تو اللہ کا ولی تھا، ایسے نہ بولو. قادیانی کہتا ہے نہیں، کس نے کہا اللہ کا ولی تھا؟ میں نے تو سنا جب وہ مرا تو اس کے منہ سے پخانہ نکل رہا تھا. لاہوری نے فوراً الزامی جواب دیا. جو ان کی تربیت ہے ہر جگہ ہے. جو باہر لڑتے ہیں وہ گھر میں بیوی بچوں سے بھی لڑتے ہیں. لاہوری نے فوراً جواب دیا، کہنے لگا یہی بات تو مخالف مرزا صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جب مرزا صاحب مرے تو ان کے منہ سے پخانہ نکل رہا تھا. عامر صاحب کوئی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی مرزا صاحب نے کوئی اچھی بات بھی کی ہو، آپ وہ بیان کر سکیں. آپ نے مجھے اچھی بات بہت ساری بیان کرتے ہیں. آپ مرزا صاحب کی کون سی بات عامر صاحب ایک منٹ طارق صاحب نے یہاں تے چپ کراؤ تے یا پھر باسٹر صاحب نو بلاؤ تاکہ پھر انہاں دا مطلب انہاں نو پھر جواب مل سکے، کیونکہ میں انہاں دے لیول تے تسی کی رکھیا باسٹر صاحب نو جناب؟ تسی بار-بار تبدیل آندا باسٹر صاحب غیر مردانی انہوں نے بلاؤ. تسی گالی باز رکھیا ہے تسی اپنی مرزائی جماعت وچ، انہوں بلاؤ تے عرفان جٹ نو بلاؤ جڑے صرف گالاں کڈن واسطے رکھنے. کیونکہ وہ تہاڈی نس نس نال واقف نے نا. تے میں بھی تہاڈی نس نس نال واقف ہوں. تسی بھی مرزائی کنجرخانہ دی پیداکار ہو. اس کو تو دیکھو یا مینوں لا دیو یا انہوں نے چکو تاکہ پھر انہوں نے جواب انہاں دی لینگویج وچ مل سکے. تسی جواب دے دیو. اچھا منصور صاحب، میں 1 گھنٹہ پہلے ویکھیا کہ طارق چوہان صاحب گئے سن انہاں دی براڑ تے. اتھے عمران کالوں سی، مبشر رضا سی، اے جڑا نا سہیل ناصری بھی اتھے سی. وہ بار بار کہتا رہا ساڈے مہمان خانے چ آئے نے، طارق چوہان صاحب ساڈے مہمان خانے چ آئے نے.
ਤੇ ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਤਕੱਲਫ ਔਰ ਬਗੈਰ ਸਬਬ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨੇਟ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪੈਰਾਏ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਸੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਉਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 50 ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਲ ਮਾਲੋ ਬਿਨੀਆਤ, ਅਮਾਲ ਦਾ ਦਰਮਦਾਰ ਨੀਅਤਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਅਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਨਸੈਪਟ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ? ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੀਅਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ कैसी फजूल मतलब दलील है कि एक आदमी मुंह तो जड़ा कह रहा है, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਕਮਲ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਰਾਤੀ ਆਈ ਬੰਬਾਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼बिल्ला ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੀਅਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹਿ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। हाँ फतवा जाहिर नहीं लगता है, दिल दी नीयत तो नहीं लगता है। स्कॉलर या कोई लगा सकता है ना कंसेंसस करके, लेकिन अगर वो फतवा लग जाए और असल में बात वही है ना, ये मंसूर साहब को रात को सीकर ने मुकम्मल मौका दिया। वहां पे भी मंसूर साहब ने यही बात की थी कि मैं किसी के दिल में वड़ के देखा है, तो सीकर ने इसको डीप ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼बिल्ला ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਏਡੇ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼बिल्ला ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ, ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਸਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰਾਓ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਾ